Honorable Sister Kiran, Raj Yoga teacher, Honorable Treasurer of Gaikwad Patel Group of Institution, Professor Sandeep Gaikwad, respected Principal Dr. S.S. Rathore, respected Vice Principal Professor Patil, all deans, HODs, faculty members of organization, and hope you all are doing well and keeping yourself safe in this COVID-19 pandemic. In this challenging, unstable, and uncertain period, we have to come out stronger as a better version of ourselves. And I'm sure that today's event is going to be a great learning experience for you all. Here for a very momentous event for a webinar on stability and success in challenging times in association with the Institution of Engineers India, IEI chapter. The importance of organizing this webinar is to make you understand when you face difficulty, you should know that challenges are not sent to destroy you. They are sent to promote, increase, and strengthen you. Always stable, you are able to act properly under all circumstances. The power of stability for the best decision in most difficult times. And you know, at some point in our lives, most of us will face times that are extra stressful or that even shake us to our core. Having strong coping strategies like focusing on your spiritual life and other techniques can be particularly useful in dealing these tough times. With these words, I now request our Honorable Principal Dr. S.S. Rathore for opening remark. Thank you, Neha. Am I audible? Hello. Good morning, all the participants. And I take this opportunity to welcome our honorable speakers of the day, Dr. Swaminathan and Behan Kiran. The topic has aptly been chosen, stability and success in challenging times. So to my perception, success has many meanings, and the meaning depends upon the person who is trying to define success. For some, it may be gaining wealth, it may be getting bigger positions, and for others, it may be a happy life with the family and friends. So, variation in the definition and meaning of success is quite remarkable, and it changes from person to person. But what is more important rather than success is the stability of mind. Process. I'm not sure whether the examinations shall be held and how the process of evaluation shall be changed in an environment when COVID-19 pandemic is taking place. And especially for those students who are trying to get admission, who are in standard 10 and standard 12, who are trying to design their career, define their career, it is all the more difficult to find out what is going to happen next. So in an environment of chaos, in an environment of turbulence, in an environment where there are many doubts are prevailing, we need a stable mind to decide what is right or what is wrong. And decision making may only take place correctly when
we have a stable mind. For that specific purpose, we have chosen two eminent speakers who will speak about the stability. And I would also expect Dr. Swaminathan to define precisely, in precise words, for our students and for our listeners, what exactly is success. Because many of us have misconceptions about success. I believe this webinar shall be highly helpful to those who are finding it difficult to make a right decision making, and for all those who want to take a big decision in their careers, especially the students trying for the job or selecting a right engineering college, a right engineering profession. So with all this, I want to hand over the mic to our speakers so that we can listen to them and can be benefited by their wisdom and fine sense of judgment. Sir, for your kind words. A very special and renowned session. Honorable, I obviously Swaminathan it's a mechanical engineering, awarded PhD in emotional and quantum intelligence. For last 25 years, he is associated with the Brahma Kumari Vidyalaya. He was faculty of engineering and management for 6 years and corporate trainer for 13 years. He addressed more than 100 national conferences of engineers, doctors, media, transport, youth, education, nurses, and spiritualists. Also conduct sessions in countries of Asia, Africa, and Middle East. I feel honored by telling you that Sir has received honors and awards. Few are awarded with the Sunrise Peace Award by Sunrise Peace Mission, honored by with Award of Excellence and Nation Builder Award, has a unique distinction training at the highest battlefield of the world as at SBS at India-Pakistan-China border. He has also appeared on new television talk shows which are being aired on Awakening Peace of Mind channels. Has trained students at IIT Kharagpur, IIT Mumbai, IIT Kanpur, and Center of Excellence IIT Calcutta, Delhi. His research guide in emotional and quantum intelligence for PhD students. Sir is well conserved with perfect knowledge of various topics that he has delivered lectures in many corporate industries and institutions. Few of in are Tata Motors, SBI, Bhilai Steel Plant, Bajaj Alliance, Atomic Research Center, Reliance Industries, Mahindra & Mahindra, NT, and many more top industries. Some of the hospitals are Tata Memorial Hospital, JJ Hospital, Indian Medical Association, Nanavati Hospital, and many more, along with military, police force, and paramilitary force. A warm welcome, sir. I am very pleased and honored to have you with us today. We are excited to. Now I request you to please address our students. Please, sir. Okay, good morning, all of you. Is my voice audible? Is my voice clear? Can someone put a yes on the chat so that I can? Okay. There was one Mr. Prathamesh Yadav who was giving a signal to me, everybody, that the voice is clear or not. Yeah, thank you. Thank you, Mr. Prathamesh Yadav. Thank you very much. Okay, most respected Honorable Dr. S.S. Rathod, sir, the Honorable Principal, Professor Pragrati Patil, Madam, the Honorable Vice Principal, Professor Neha ji, the coordinator, and respected dean directors, respected head of the department, respected faculty members, and last but not the least, my dear wonderful young friends, students who are listening to me and who are hearing me. It's a great pleasure to meet all of you. मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे बहुत प्यार से याद किया और हमारा स्वागत किया
My special thanks to the Honorable Principal Rathod sir. और खास कर in today's context, every one of us are facing a lot of challenges, and therefore the topic that you have selected requires acknowledgement and appreciation. कि जो वर्तमान समय पर जो चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे पेरेंट्स हो, या हम शिक्षक हो, हम सभी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौतियां हैं. तो ऐसे समय पर स्थिरता और सफलता ये एक बहुत सुंदर दो आयाम हैं. Since the situation is little challenging, so I want to start it on a very lighter note. So my dear friends, I am going to start with a very simple anecdote. Anecdote को दोस्तों हिंदी में चुटकुला कहते हैं. I request all of you, whether you understand this chutkula, you don't understand the chutkula, at least try to bring a smile on your face. And then after telling this chutkula, I'll tell you why this joke is very, very important in today's present times. Okay, तो बीच बीच में मैं पूछता रहूंगा आपसे, तो मुझे थोड़ा सा yes बताना, नहीं तो कभी कभी भी teachers keep on speaking, and the audio is muted or something like that. Okay, thanks Kanchan ji, thanks Arpit ji. All of you are giving me some signals. Okay, so story goes on like this, with due respects to the countries and the characters involved. Once it so happened that the Japanese president was on a trip to America. So before embarking on the trip, the officers of the Japanese president walked up to him and told him, "Sir, you're going to America for the first time?" The Japanese president said, "Yes." "Sir, how about communicating with the American president English, sir?" The Japanese president said, "My God, I do not know English." "Sir, haven't you heard the first impression is the best impression? So, sir, if you can speak with the American president English, sir, it will lead a impression." "But I do not know English." "Sir, for the sake of the country, is it not possible for you to by heart a couple of sentences?" देश के खातिर एक दो सेंटेंस रट तो सकते हो ना? "Yes, for the sake of the country, I'll do that. Tell me what do you want me to speak?" "Sir, very simple, sir. As soon as you meet the American president, just ask a logical question. How are you?" Right? Which question he should ask? Can you in the chat? कौन सा question पूछना है Japanese president को? American president से? Can anyone put it on the chat so that I can understand you are with me? Good. अरे वाह, beautiful. Wonderful. You are with me. Thank you, my dear students. Oh, wonderful. अरे बस ठीक है. Great. अच्छा लगता है कि आप बच्चे मेरे साथ ट्रैवल करते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. Okay, great. अच्छा, so the officers told, "Sir, as soon as you meet the American president, he is going to ask you the same logical question, but at that time you should reply same as you, sir." जब अमेरिकन प्रेसिडेंट आपसे पूछेंगे ना, "हाउ आर यू सर?" तब आप जवाब देना सेम एज यू, सर. couple of sentences for the sake of the country. He said, "Yes." Now start up by hearting. How are you? पहली बार इंग्लिश बोल रहे थे तो जापानीज प्रेसिडेंट को थोड़ा तनाव भी हो रहा था. How are you? As his motorcade was traveling towards the White House, How are you? He entered the White House. He saw the American president walking. How are you? और जैसे ही अमेरिकन प्रेसिडेंट सामने पहुंचे, a Japanese president full of stress, speaking English for the first time, instead of asking how are you, पूछ बैठे who are you. अमेरिकन प्रेसिडेंट को लगा, वाह, मेरे अमेरिका में आकर, मेरे व्हाइट हाउस में आकर, you have got the guts to ask me as to who am I. तो अमेरिकन प्रेसिडेंट को लगा, maybe I've not heard him properly. So he gave a face language and a body language that I didn't get you. Face language, body language किसी को भी समझ में आ जाता है. Japanese president got the clue, shouted at the top of his voice, "Who are you?" Now that was the limit of indecency. At that time, Mr. Bill Clinton was the president of America. उन्होंने भी बहुत जोर से चिल्लाकर कहा, "I am the husband of Hillary Clinton. Who are you?" And the Japanese president replied, "Same as you, sir." Yes. Same as you, sir. समझ में आया? जितनों को जोक समझ में आया वो yes लिखे चैट में. Yes. Wow.
yes. Very good, very good, very good. Chalo, thank you, my dear young friends. And I'm sure, you might have smiled on this particular joke. Actually, ये जो joke जो है ना, आज के context में एकदम correct है. मुझे ये जोक तब याद आया क्योंकि अराउंड 1 month बिफोर ड्यूरिंग द लॉकडाउन टाइम मैं मास्क वास्क पहनकर थोड़ा सा टाउन गया था कुछ सामान खरीदने के लिए, तो बहुत भीड़ थी, तो मैंने कहा थोड़ा भीड़ हट जाए फिर मैं उतरूंगा, और अंदर थोड़ा सफोकेशन भी हो रहा था, तो मैंने क्या किया पता, कांच को नीचे डाला, और मास्क पहनने की इतनी आदत नहीं होती है तो मैंने मास्क भी उतार दिया. कुछ समय के बाद आई सॉ वन पर्सन वॉकिंग अलोंग एंड देन ही लुक्ड एट मी एंड सेड, सर वेरी नाइस टू मीट यू सर, हाउ आर यू सर. और मैंने उसको देखा तो उसने हाउ आर यू पूछा, और मैंने उससे पूछा हु आर यू, आप कौन हो. करेक्ट, because I was not able to see him in the sense he was putting a mask. Okay. Is my voice audible? Is my voice audible? अगर audible है तो yes लिखेंगे please. Is my voice audible? Yes. So my dear friend Bhupesh, आपने लिखा कि my voice is not audible. Please check your internet connection, or otherwise it is getting recorded also. You can watch it later on also. Thank you my dear young friends. I'll keep on asking you, right, so that you travel with me. तो मैं कह रहा था दोस्तों कि जब उसने मुझसे पूछा हाउ आर यू, और मैंने उससे कहा कि हु आर यू, बिकॉज आई वाज नॉट टू सी हिम बिकॉज ही वाज पुटिंग अ मास्क, राइट. So one of the greatest changes, paradigm shift that has happened because of this small coronavirus is a terrific paradigm shift from how are you to who are you. अभी थे आप कैसे हो, अब हमें पूछना पड़ेगा कि आप कौन हो, who are you. And in this context is what I am going to interact with you for around 25 to 30 minutes. Or right, what is very very important is बहुत challenging times है, और ऐसे challenging times में stability तो बात समझ में आती है, लेकिन success आज के समय पर बहुत बड़ी challenge है. So I remember sometime before when I was teaching this subject of engineering mechanics in an engineering college under Mumbai University. So I was given this subject of engineering mechanics, and as all you know, my dear young boys and girls from engineering college, this mechanics is little considered to be little tough. तो मैं 3-4 महीने मैं सेमेस्टर में पढ़ाता था. At the end of 4 months when my students were ready to enter the examination hall, तो मैं अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को कहता था, बच्चों जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल में गए, जैसे ही आपको प्रश्न पत्र मिला मैकेनिक्स का 10 क्वेश्चंस और एक भी क्वेश्चन का जवाब नहीं मालूम, उस वक्त भी अगर आप मुस्कुरा सकते हो, जीवन के हर आप जरूर जरूर पास हो जाएंगे. So I used to tell my students, the moment you get your engineering mechanics question paper and 10 questions are not a single question you are able to attempt, at that time also if you can smile, you have passed the litmus test of life. क्यों? क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है, जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुआ, जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुआ, हार कर मुस्कुरा सकते हो अगर तो वह जिंदगी है, हार कर मुस्कुरा सकते हो अगर तो वह जिंदगी है. सो माय डियर यंग फ्रेंड्स, अगर सब कुछ ठीक चल रहा है, इफ एवरीथिंग इज ओके, तो हम इंजीनियर्स की जरूरत ही नहीं है, फिर तो दुनिया तो चलती रहेगी. लेकिन अगर कहीं ना कहीं कोई चैलेंजेस है, कोई परिस्थिति है, उसको ठीक करने के लिए इस व्हाट इंजीनियर्स आर ऑलवेज रिक्वायर्ड, राइट. तो ऐसे समय पर जब चारों तरफ विपरीत परिस्थिति है, आई थिंक इट इज टाइम फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ इंजीनियरिंग and apply it to our own life, because engineering is all about balance, engineering is all about control, engineering is all about equilibrium. engineering का अर्थ ही होता है स्थिरता, और ये बहुत बहुत जरूरत है. तो आज मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं, a small request to all of you, कि आज तक हम लोग सक्सेस करते थे, लेकिन अब जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वी शुड वर्क ऑन स्टेबिलिटी. क्योंकि जैसे प्रिंसिपल सर बहुत अच्छी तरह से बता रहे थे कि सक्सेस हर व्यक्ति के लिए अलग अलग पैमाना हो सकता है. देयर कुड बी डिफरेंट पैरामीटर्स फॉर सक्सेस फॉर डिफरेंट, इट्स एब्सोल्युटली राइट. एंड व्हाटएवर यू
have in your mind, we acknowledge it, and with lots of love, we appreciate it. Correct? If I am stable, automatically I will towards success. इससे stability precedes success. और इसलिए पूरे जो मैं अपना interaction, I'll be focusing upon stability. Correct? अच्छा, आज के वर्तमान समय पर, okay, there are 3 major paradigm shift that has happened. और कहते हैं life, time are the 2 greatest teachers. प्रिय दोस्तों, ये जो जीवन और समय जो है ना, हमारे 2 बड़े शिक्षक हैं. Life tells us how to make the best use of time, and time, when time comes, teaches us the value of life. जीवन हमें ये बताता है कि समय का हम सदुपयोग कैसे करें, और समय समय आने पर हमें जीवन का मूल्य सिखाता है. करेक्ट? इसलिए कहते हैं we have to change with respect to time, or time would force us to change. समय के हिसाब से अपने में थोड़ा परिवर्तन लेकर आना है, ताकि हम सफलता के लिए आगे बढ़ सके. क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, उसमें हम उलझ नहीं, लेकिन समय के आधार पर अपने में चेंजेस लेकर आए. राइट? We have to change with respect to time, or time would force us to change. Okay. Having said this, the corona small virus has come to our life, and it has shaken us to awaken us to some reality. दोस्तों, ये छोटा सा अदृश्य वायरस जो है, वो हमारे जीवन में आकर हमें बहुत जोर से झंझोड़ दिया, और कुछ परिवर्तन करने पर हमें विवश किया. Right, from the dimension of students also, and I'll be speaking from the angle of teachers also. So which are the 3 changes that we need to bring? The first change that has been brought, particularly in the education sector, is a paradigm shift from a good memory to a powerful mind. अच्छा स्मरण शक्ति से ज्यादा इंपॉर्टेंट शक्तिशाली मन है. आज तक हमारा एजुकेशन सिस्टम जो चेक कर रहा था, I'm not criticizing education system. आप प्लीज मुझे गलत नहीं समझना, because I am also a part and parcel of this education system. लेकिन मैंने भी इस सत्यता को महसूस किया है कि आज तक हम टीचर्स और हमारा कॉलेज और हमारा यूनिवर्सिटी बच्चों के स्मरण शक्ति को चेक कर रहा था. लेकिन कहीं ना कहीं अब हमें स्मरण शक्ति से ज्यादा शक्तिशाली मन की तरफ जाना जरूरी है. I've been associated with various industries for the past 20 years on the part of human resource training and development. और हमेशा HR की तरफ से जब भी हम कॉलेज में जाते थे, और मुझे good sweet memories when I visited your college sometime before. हम लोग हमेशा ये कहते थे कि बहुत सारे फॉर्मूलास, इक्वेशंस को याद करना शायद शिक्षा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा एजुकेशन सिस्टम को, हमारे बच्चों के मन को शक्तिशाली बनाना बहुत जरूरी है. राइट? और इसलिए वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट द माइंड इज ऑल अबाउट. तो मुझे याद है, आई वाज इंटरेक्टिंग विद माय इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स इन मुंबई. तो मैं बच्चों से पूछ रहा था, हाउ डू यू डिफाइन मैनेजमेंट? तो किसी ने कहा, सर मैनेजमेंट इज बेसिकली मैनेजिंग मेन, मटेरियल, मनी, मिशनरी एंड मेथोडोलॉजी. तो मैंने कहा, वेरी गुड, दीस आर द 5M. राइट? मेन, मटेरियल, मनी, missionary, methodology. But all these 5M can only be managed when we are able to manage the 6th M. And what is the 6th M? And that is the mind. दोस्तों, हमारा मन है जो इन 5 रिसोर्सेस को मैनेज करता है. तो मैंने बहुत प्यार से स्टूडेंट से पूछा, बच्चों, बचपन से लेकर टिल योर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक जो आप पढ़ाई करते हो, कितना प्रतिशत सिलेबस आप मन के बारे में पढ़ते हो? And my students are very very sweet students. तो एक खड़ा होकर कहता है, सर आउट ऑफ सिलेबस सर, मन के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है. तो आज हमें समझ में आ रहा है कि स्थिरता, स्टेबिलिटी इज ऑल अबाउट माइंड. तो आज सबसे पहले हम समझेंगे मन क्या है. व्हाट इज माइंड? माइंड बेसिकली इज अ टीम, TEAM. आप में से कोई स्टूडेंट ये टीम को चैट में लिखना, तो आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी. इफ somebody is, my voice is breaking, the others can go through it. TEAM. T means thoughts, E means emotions, A is attitude,
and M is memories. Thoughts, हाँ T का फुल फॉर्म लिख सकते हैं स्टूडेंट. T is thoughts, E is emotions, A is attitude and M is memories. आप जरा ये लिखेंगे चैट में. E means thoughts, E means emotions, A is attitude and M is memories. Yes, you are writing. You are writing. Thank you. Thank you. Wow. Vaibhav has written all the four. Yes. Ninad has written it. Yes. Pallab has written it. Ashwini has written it. Great, great, great. Wow, wow. देवयानी ने भी लिखा. बहुत अच्छा. Right? Thoughts. अब मैं इसका हिंदी अनुवाद करना चाहूंगा. Thoughts means हमारे संकल्प. Emotions मतलब भावनाएं. और attitude मतलब हमारा दृष्टिकोण. और memories अर्थात स्मृतियां. दोस्तों इमोशनल इंटेलिजेंस ये कहता है, मैंने जो अपनी पढ़ाई जो की है, जो स्टडी और रिसर्च की है, वो इमोशनल और क्वांटम इंटेलिजेंस में की है. तो मैं आपको थोड़ा सा जो मैंने स्टडी किया वो मैं आपको बताऊंगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस कहता है कि हम लोग सब इंटेलिजेंट तो हैं, लेकिन अब जो समय है ना दोस्तों, हमको भावनात्मक स्तर पर बुद्धिशाली होना जरूरत है, एट द मेंटल एंड इमोशनल लेवल. तो सक्सेस को भी एंजॉय करने के लिए वी नीड टू बी मेंटली एंड इमोशनली स्टेबल, ये देखा गया है. तो जब हमारे जो इंटरनल टीम सिंक्रोनाइज्ड रहता है, हमारे थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स और मेमोरीज के बीच में एक बहुत ब्यूटीफुल सद्भावना होती है, तो हम दूसरे के साथ जेल कर पाते हैं. ओके, अच्छा, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मन को हमने समझा. अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मन को मैनेज में कैसे करूं. तो दो बातें हैं, एक है क्वांटिटी ऑफ थॉट्स और दूसरा है क्वालिटी ऑफ थॉट्स. हमारे मन के अंदर ये देखा गया कि जब बहुत सारे थॉट्स चलते हैं, बहुत संकल्प चलता है, राइट, तो ऑटोमेटिकली वो जब क्वांटिटी ऑफ थॉट्स ज्यादा चलता है, तो ये प्रोबेबिलिटी होती है कि उसकी जो गुणवत्ता है, उसकी जो क्वालिटी है, ऑटोमेटिकली कम हो जाती है. इसीलिए इफ अ माइंड इज इन अ स्टेट ऑफ स्ट्रेस और नॉट विल बी अंडरस्टूड बाय दीज फैक्टर्स. तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे मैं आपको दो ऑप्शंस देता हूं, ये दोनों ऑप्शंस को आप सोच समझकर एक ऑप्शन को चूज करना, ठीक है. I'll give you two options. The first option is कि there is one driver who is running a car in the Mumbai-Pune Express Highway with 130 kilometers per hour. एक्सप्रेस हाईवे में पहला ड्राइवर जो है गाड़ी चला रहा है 130 किलोमीटर प्रति घंटा पर, और दूसरा ड्राइवर जो है वो खंडाला घाट में चल रहा है. सामने एक गाड़ी, पीछे एक गाड़ी, और इतनी बारिश हो रही कि कुछ पूछो मत. ऐसे समय पर ये जो दूसरा ड्राइवर है, इस व्हीकल ओनली एट 8 to 10 kilometers, right? The first one is running in Mumbai-Pune Express Highway 130 kilometers per hour. दूसरा जो है खंडाला घाट पे चढ़ रहा है, बहुत बारिश हो रही है, आंधी तूफान चल रहा है, सामने कुछ दिख नहीं रहा है, और वो 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा में धीरे धीरे गाड़ी चला रहा है. अब आप बताइए माय डियर यंग इंजीनियर्स कि हु इज अ मोर इफेक्टिव ड्राइवर, पहला या दूसरा? इफेक्टिव ड्राइवर दोनों कंपैरिजन में कौन है? पहला वाला भी इफेक्टिव ड्राइवर हो सकता है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन पहला या दूसरा? यस, आप तो बड़े बुद्धिशाली हो. इट इज अ सेकंड ड्राइवर. यस, यू आर राइट. हमारी और आपकी भी परिस्थिति कुछ ऐसे ही है दोस्तों, कि इतना सारा संघर्ष चल रहा है चारों तरफ. मेरा सेमेस्टर एग्जाम्स का क्या होगा, मेरा प्रोजेक्ट का क्या होगा, मेरे कैंपस प्लेसमेंट्स का क्या होगा, जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा, वैसे भी बहुत जॉब खत्म हो गई. इतना जब संकल्प चलता है, तो ऐसे समय पर वी इंजीनियर्स हैज टू बिकम एन इफेक्टिव ड्राइवर ऑफ आवर. गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं, लेकिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें भी स्टेबिलिटी हो. एक बार एक युवक जो था ना, वो बहुत तेजी से भाग रहा था, और भागते भागते वो कह रहा था कि मुझे दिल्ली पहुंचना है, मेरा लक्ष्य दिल्ली है. तो बहुत तेजी से भाग रहा था. तो व्यक्ति, टीचर वाज सिटिंग, और वो टीचर जो आराम से पेड़ के नीचे बैठा था, और उसने जब स्टूडेंट देखा कि वो बहुत तेजी से भाग रहा है, तो मुस्कुराते उसने कहा, माय डियर बॉय, आप कभी दिल्ली नहीं पहुंच सकते हो. तो स्टूडेंट को टीचर पर बड़ा गुस्सा आया.
बोला अरे आप कैसे कहते हो भाई दिल्ली नहीं पहुंचूंगा, मैं तो पुरुषार्थ कर रहा हूं ना, मैं तो मेहनत कर रहा हूं ना, और तेजी से भागता है। फिर टीचर मुस्कुराकर कहता है नहीं माय डियर बॉय, यू विल नॉट बी रीच दिल्ली। सर हु आर यू टू टेल मी आई एम नॉट बी एबल टू रीच, आई एम डूइंग द वर्क ना, और तेजी से भागता है। फिर टीचर मुस्कुराता है, आई एम सो सॉरी माय डियर बॉय, यू विल नॉट बी एबल टू रीच योर डेस्टिनेशन विच इज दिल्ली। अब स्टूडेंट को सचमुच बड़ा गुस्सा आया, टीचर अच्छा तो टीचर है, बड़ा ज्ञानी तो टीचर है, लेकिन वो मुझे डिमोटिवेट कर रहा है, वो तो मुझे मोटिवेट करना चाहिए, ऊपर भविष्यवाणी कर रहा है कि तू सफल नहीं होगा। तो स्टूडेंट टीचर के पास बड़े गुस्से से बोला सर मैं मेहनत कर रहा हूं ना सर, मैं भाग रहा हूं ना सर, आप देख रहे हो ना सर, तो आपको मोटिवेट करने के बजाय पर आप तो डायलॉग पे डायलॉग बोल रहे हो कि यू विल नॉट बी एबल टू रीच। सर यू टेल मी व्हाई आई विल नॉट बी एबल टू रीच। उसके जो टीचर जो सर जो थे ना मुस्कुराते हुए कहते हैं माय डियर बॉय आई वाज टेलिंग यू द फैक्ट बिकॉज आप तेजी से तो भाग रहे हो लेकिन सही दिशा में नहीं भाग, यू आर रनिंग नो डाउट बट यू आर रनिंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन माय डियर बॉय। दिल्ली उस तरफ नहीं है जिस तरफ आप भाग रहे हो, दिल्ली इज इन द विपरीत डायरेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जीवन में सिर्फ भागना जरूरी नहीं है दोस्तों, भागते बीच में रुकना बहुत, देखना बहुत जरूरत है कि मैं सही दिशा में भाग रहा हूं कि नहीं भाग रहा हूं, ये बहुत जरूरी है। And that is what. Are you able to understand me? In case if you are able to communicate, get this message, yes. Thank you, Dilip. Written, yes. You have understood. तो अभी के समय पे ना बहुत तेजी से मत भागो, लेकिन रुको। This coronavirus has asked all of us, चाहे students हो, चाहे parents हो, चाहे हम teachers हो, right? It has all asked us to stop, introspect. कि हम लोग जो अभी तक भाग रहे, क्या हम लोग सही दिशा में भाग रहे थे कि नहीं भाग रहे थे? That is what is called as emotional intelligence. Okay, so I'll come down to the basic point. The paradigm shift from a good memory to a powerful mind. तो मैं आज आपको सबको रिक्वेस्ट करता हूं, वर्तमान समय पर आप लोग है ना कॉलेज की आपको बहुत याद आती होगी, हम टीचर से ज्यादा यू माइट बी मिसिंग योर फ्रेंड्स, राइट? क्योंकि अपने क्लासमेट से मिलना, अपने दोस्तों से मिलना, कॉलेज में मिलना, इट वाज सच अ वंडरफुल थिंग, right? Or I can understand your challenges that you're 5 to 6 months you are stuck up inside your ghar and you're not able to go to the college. So how much you are missing your friends, I can understand. इसे कहते हैं a friend in need is a friend indeed. Yes, you might be communicating to them through your phone or through your WhatsApp or other media for communication, but आपस में बैठकर बातें करना और आपस में बैठकर है ना कभी कभी टीचर्स का मजाक उड़ाना और दोस्तों की पैरों को खींचना एक अपने में एक आनंद था, विच आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर मिसिंग इट आउट। करेक्ट? हम टीचर्स क्लास में आते थे तो आप लोग बहुत प्यार से हमारे बारे में अच्छा भी बोलते थे, हमारे बारे में मजाक भी उड़ाते थे। इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ अ गेम माय डियर फ्रेंड्स, वी टीचर्स आल्सो यूज्ड टू एंजॉय दैट। हम लोग स्टाफ रूम में आकर आप बच्चों के बारे में करते थे, आप हम टीचर्स के बारे में बात करते हैं। So it was such a wonderful emotional equation between the student and teachers that we are all missing it right now. ऐसे समय पर जहां दोस्तों की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो it is the best time where you make your mind as your best friend. दोस्तों आपको अपने मन को एक बहुत अच्छा दोस्त या अपने मन को एक बहुत अच्छी सखी बनाना पड़ेगा. You have to make your mind as a best friend. And that is what I meant by shifting from a good memory to a powerful mind. और जो भी बंदा है जो अपने मन को एक बहुत अच्छा दोस्त बना सकता है, I'm telling you, success and stability would come like a shadow to you. Okay, so that is the first step. Now the second paradigm shift, the good memory to a powerful mind. और जो हमने सीखा, हमें अपने मन को एक अच्छा दोस्त बनाना पड़ेगा. The second part, which is very, very important, my dear friends, is a paradigm shift from job orientation to skill orientation. Correct? आज तक जो स्टूडेंट्स कॉलेज में जाते थे या यूनिवर्सिटी में जाते थे, वो पढ़ते थे 4 साल का इंजीनियरिंग हो या एमटेक हो या एमबीए हो, और फॉर दैट मैटर एनी अदर कोर्स, द मोमेंट यू यूज्ड टू गेट अ सर्टिफिकेट, हमको जैसे ही सर्टिफिकेट मिलता था तो हमको लगता था नाउ आई एम एलिजिबल फॉर अ पर्टिकुलर जॉब. लेकिन कहीं ना कहीं अभी का जो पूरी तरह से एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ है, जॉब ओरिएंटेशन के बदले में स्किल ओरिएंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है.
आज के जमाने में और आने वाले समय पर वही व्यक्ति सफल होगा, वही व्यक्ति बहुत खुश होगा, वही व्यक्ति धन कमा सकता है who is working on जो स्किल पर काम करता है। जैसे आप देखेंगे जब भी आप इंटरव्यू में जाते हैं ना, तो वी आस्क यू 2 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन तो हम आपसे पूछते हैं प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आप अपना परिचय दीजिए। और दूसरा प्रश्न हम ये पूछते हैं कि राइट प्लीज टेल योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, प्लीज टेल योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। These are only 2 standard questions at the final round of the interview. तो जब ये कैंडिडेट इंटरव्यू हॉल में है तो हम लोग उसका वो चेहरे के वो हाव भाव को देखते हैं कि उसके अंदर कितना विश्वास है, राइट। नंबर 1 वो आपके बॉडी लैंग्वेज और फेस लैंग्वेज से मिल जाता है। दूसरा प्रश्न हम लोग ये पूछते हैं कि टेल मी योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। ये हम लोग क्वेश्चन पूछते थे और आपको लगता था कि इसका जवाब देने से मुझे जॉब मिल जाएगा, एंड इट वाज ट्रू आल्सो माय डियर यंग फ्रेंड्स। लेकिन अब के समय पर हमको अपने वो स्ट्रेंथ पर काम करना पड़ेगा। और स्ट्रेंथ का मतलब यहां मैं कह रहा हूं कि आपको कोई ना कोई एक को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। यू हैव टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर स्किल। सपोज इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग राइट फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स to you have fluid mechanics to SOM, DOM, COM, production, design, पूरा सब्जेक्ट्स। लेकिन ये पूरे सागर में कौन सा एक केंद्र बिंदु है जिसमें आपकी अपनी शक्ति है? आपको स्किल्स पर काम करना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आप सभी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि को आइडेंटिफाई करें कि कौन से स्किल में आई एम गुड, और आने वाले समय पर किसी भी बंदे के पास जो स्किल होगा वो कभी भी जॉब के लिए तरसेगा नहीं। इज वर्किंग ऑन द स्किल, राइट। और एक स्किल मैं आपको बताना चाहूंगा, यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस स्किल। आप पूछेंगे स्वामी सर इट्स गेटिंग वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, वैसे भी इतना तनाव हो रहा है, ऊपर से आप भी हमको प्रेशर डाल रहे हो कि भाई स्किल ढूंढो, मैं कहां से स्किल ढूंढूं। चलो, आई कैन अंडरस्टैंड योर इमोशंस एंड फीलिंग्स माय डियर फ्रेंड्स। तो एक स्किल पर काम करना बहुत जरूरी है वर्तमान समय पर, right? And that skill, whether you're doing a job of an engineer, you're doing the job of a manager, or you are doing any job in this world, that skill is very important. And that skill is your power of concentration. Ekagrita Shakti. This is the skill which I would love to communicate today. Correct? जैसे पुराने जमाने में गुरुकुल सिस्टम में जो सिखाया जाता था, for that matter ancient education system, they used to teach the concept of concentration. Unfortunately आज हमने मन को एकाग्र कर हमने कभी सिखाई नहीं, इसलिए हमारा मन इधर, क्योंकि हमने अपने मन को फोकस कभी नहीं किया। करेक्ट। मुझे याद आता है बचपन में जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो हमारी एक बहुत अच्छी टीचर थी। शी वॉज अ ब्रिलियंट टीचर। वाणी इतनी मधुर कि कुछ पूछो मत। तो टीचर का एक संस्कार था, पढ़ाते पढ़ाते वो गीत गाती थी। एंड अ फेवरेट वन लाइन सॉन्ग वाज कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज। फिर पढ़ाना आरंभ करती, फिर गीत गाती थी, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज। तो मुझे मैडम का गीत संगीत का प्रोग्राम बड़ा अच्छा, मैं बैठकर गिनता रहता था आज मैडम ने कितनी बार गीत गाया। एग्जाम नजदीक आ रहे थे, मैडम फुल स्पिरिट में 1 डजन से ज्यादा बार गीत गाया। मैंने खड़े होकर पूछा, मैडम प्लीज टेल मी व्हाट इज कंसंट्रेशन। शी लुक्ड एट मी, स्टेयर्ड एट मी, स्माइल्ड एट मी एंड सेड, स्वामी डोंट आस्क क्वेश्चंस, कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज। अरे कंसंट्रेशन क्या, ये तो बताया नहीं, राइट। उस दिन मैं घर में आया तो मेरे पापा से मैंने पूछा, पापा व्हाट इज कंसंट्रेशन। पापा का चेहरा देखकर मुझे समझ में आ गया कि पापा के लिए भी आउट ऑफ सिलेबस है। पापा बोलने लगे, फोकस फोकस करो। मैंने कहा पापा फोकस क्या होता है? ध्यान लगाकर पढ़ाई करो। मैंने पूछा पापा ध्यान क्या होता है? एकाग्रता से पढ़ाई करो। मैंने पूछा पापा एकाग्रता क्या होता है? कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज। मैं कहा पापा यही तो मैं पहले पूछ रहा था, आप जो बता रहे उसको इंग्लिश में सिनोनिम्स कहते हैं, हिंदी में उसको पर्यायवाची शब्द कहते हैं। मैं दूसरा दिन जब क्लास में गया तो मेरी टीचर ने मुझे बोला, स्वामीनाथन yesterday you asked a very wonderful question, today I am going to explain to you what is concentration. I was very excited. मैंने बताइए एकाग्रता क्या होती है। तो मैडम ने ना महाभारत की कहानी सुनाई। आप स्टूडेंट्स ने भी सुना होगा
पांडवस और कौरवस थे. लेट अस टेक इट एज अ स्टोरी, राइट? अच्छा बताइए, पांडवस और कौरवस के गुरु का नाम क्या था? बॉक्स में लिखेंगे. पांडवस और कौरवस का गुरु का नाम क्या था कहानी में, महाभारत की कहानी में? वेरी गुड यार, वेरी all of you young boys and girls, very good answer. It was called as Guru Dronacharya. So Pandavas और कौरवस को, yes, I appreciate your knowledge is very good, very good. तो पांडवस और कौरवस को गुरु द्रोणाचार्य पता क्या करते हैं? उनको बाहर लेकर जाते हैं और उनको एक पेड़ में ना एक पंछी होती है, और गुरु द्रोणाचार्य उनको कहते हैं आपका जो लक्ष्य है ना, पंछी की आंख है. तो अगर आप, गुरु द्रोणाचार्य बच्चों से कहते हैं, स्टूडेंट से कहते हैं कि इफ यू आर एबल टू हिट द आई ऑफ द बर्ड यू आर सक्सेसफुल. ठीक है, वेरी गुड, उनको लक्ष्य मिल गया. तो सभी अपना वो एरो और वो वो लेते हैं और स्टार्ट करते हैं. तो गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं वेट वेट, और वो स्टूडेंट से पूछता है कि आपको क्या दिखाई? तो अर्जुन, बाकी सभी कहते हैं कि हमें पेड़ दिख रहा है, पंछियां दिखाई दे रहे हैं, पत्ते दिखाई दे रहे हैं. इट वॉज ओनली अर्जुन हु सेड कि मुझे पंछी की सिर्फ आंख दिखाई दे रही है. और गुरु द्रोणाचार्य कहता वेरी गुड. और फिर अर्जुन जैसे ही वो कहता पंछी की आंख और अपना एरो को लेता है, तो गुरु द्रोणाचार्य कहता नहीं, यू नीड नॉट डू इट, यू आर ऑलरेडी बिकम सक्सेसफुल, आई डिक्लेयर यू सक्सेसफुल. तो बाकी लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है कि भाई अर्जुन ने ना बाण नहीं चलाया और वो कैसे सफल हो गया. तो गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं नो, ही अंडरस्टूड द सीक्रेट ऑफ कंसंट्रेशन. हमारी मैडम ने हमको ये कहानी सुनाई और मुझे कहा स्वामीनाथन डिड यू अंडरस्टैंड? मैं कहा यस आई अंडरस्टूड. सक्सेस के लिए टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ टारगेट आपको देखना चाहिए. वेरी गुड. अच्छा, उस दिन इंटरवल के बाद ना मैं बाहर गया, तो हमारे स्कूल में ना बहुत सारे पेड़ थे. तो मैंने एक पेड़ में जाकर खड़े होकर देखा, तो मुझे तो सब कुछ दिखाई देने लगा. तो मैंने कहा मैडम ने तो अभी कहानी सुनाई कि पंछी की आंख दिखाई देनी चाहिए. तो मैं उस पेड़ पर गया जहां पंछी बैठी थी, और फिर देखा मैंने, तो मुझे तो सब कुछ दिखाई देने लगा. तो मैं दौड़ कर स्टाफ रूम में आया, मैडम को, कैन यू प्लीज कम आउट फॉर अ मिनट? व्हाट इज दैट? मैडम 1 मिनट बाहर आओ. अरे स्वामीनाथन तुम मुझे बहुत परेशान करते हो. मैडम प्लीज आइए ना. तो मैडम मेरे को कैलकम, तो शी केम अलोंग विथ मी. मैं एक पेड़ के सामने खड़ा हुआ जहां पर पंछी भी थी, और मैडम से पूछा मैडम आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो शी गॉट लिटिल दिस वन, व्हाट स्वामीनाथन सच अ स्टूपिड क्वेश्चन, अरे पेड़ दिखाई दे रहा है. मैं कहा मैडम मुझे भी पेड़ दिख रहा है, मुझे भी उसका ट्रंक दिखाई दे रहा है, मुझे भी उसके ब्रांचेस दिखाई दे रहे हैं, मुझे भी उसके लीव्स दिखाई दे रहे हैं, मुझे भी उसकी वहां पे बैठी हुई पंछी दिखाई दे रही है. लेकिन मैडम कुछ समय पहले तो कहानी में आपने ये बताया था कि अर्जुन को सिर्फ पंछी की आंख दिखाई देती थी, मुझे तो सब कुछ दिखाई दे रहा है. तो मैं तो अर्जुन नहीं बना ना. अब अर्जुन ने जब कहा मुझे पंछी की आंख दिखाई दे रही है, वो कैसे पॉसिबल हो रहा है? आई एम नॉट एबल टू सी. तो जैसे ही मैडम ने कहा ना, शी स्टार्टेड लुकिंग एट दैट बर्ड एंड सेड यस स्वामीनाथन आई एम आल्सो एबल टू सी एवरीथिंग. मैंने कहा लेकिन मैडम कहानी में तो आपने ऐसे बताया कि अर्जुन को सिर्फ पंछी की आंख दिखाई दे रही है. मैडम ने कहा यार, शी स्टार्टेड थिंकिंग एंड शी सेड स्वामी you also think about this answer and when you get that answer ना, please come and tell me. उस दिन मेरी मैडम से मैंने एक विशेषता सीखी. A teacher need not know everything in his or her life, but a teacher should keep a mind open for learning. ये बहुत वंडरफुल विशेषता मैंने अपनी टीचर से सीखा, राइट? तो बच्चों, मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि अगर अर्जुन ने कहा कि मुझे सिर्फ पंछी की आंख दिखाई दे रही है, लेकिन अगर आप पेड़ के सामने जाएंगे तो आपको तो सब कुछ दिखाई दे रहा है ना. सो व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ कंसंट्रेशन? कैन एनीवन राइट इट ऑन द चैट बॉक्स? एंड इफ समबडी गिव्स मी द राइट आंसर, आई एम श्योर वी विल ऑल फेलिसिटेट यू. करेक्ट? नहीं, मैं पूछ रहा हूं, मेरा जो प्रश्न मैं पूछ रहा हूं ना स्टूडेंट, ध्यान से सुनना. नहीं, फोकस और गोल तो ऐसे थोड़ी ना था कि बाकी जो उनके भाई लोग खड़े थे उनको फोकस नहीं मालूम था. लेकिन प्रश्न मैं पूछ रहा हूं ये स्टूडेंट्स कि अर्जुन को सिर्फ पंछी की आंख दिखाई दी, बाकी सबको क्यों नहीं दिखाई दिया? अरे भाई, स्वामी भी खड़े थे, हमारी टीचर भी खड़ी थी, हमको भी टारगेट था पंछी की आंख, मुझे और मेरी मैडम को क्यों नहीं दिखाई दिया? आपके घर अगर कोई बाहर पेड़ है तो आप पेड़ को देखिएगा ना,
how it is possible to see only the eye of the bird? Bharti gives the right answer. Bharti, you have given the right answer. Bharti लिखती है, sir, he thinks only the bird's eye in his mind. So I would love to tell the Honorable Principal, Pragriti Madam and Neha Madam, yes, your students have got the right answer. मैं आपको जवाब देता हूं. देखिए, I'll tell you and in today's context why this concentration is very important for the students as well as we teachers. देखो, जब आप पेड़ के सामने खड़े होंगे ना तो आपको सब कुछ दिखाई देगा, लेकिन अर्जुन ने जो देखा वो स्थूल आंखों से नहीं देखा. अर्जुन saw that bird's eye through the eye of his mind. उसने जो देखा अपनी मन की आंखों से देखा. और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे मैं आपको बहुत ध्यान से समझाता हूं, I'll explain to you. जैसे आप सभी स्टूडेंट जो है ना, आप अपने अपने घर पर बैठे हैं और स्वामीनाथन जो है गॉड्स ओन कंट्री केरला में बैठा है. मैं यहां पा रहा हूं. आई एम नॉट एबल टू सी एनी वन ऑफ यू. इसलिए आपका जो चैट है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है. जब आप चैट में कुछ लिखते हैं तो आई फील गुड कि यस, स्थूल नेत्रों से देख ही नहीं पाऊंगा. तो आई कैन ओनली सी यू थ्रू द आई ऑफ माई माइंड. मन की आंखों से देखना. स्थूल आंखों से देखने की बात नहीं थी. जैसे आपके पास कोई कैमरा होता है ना, तो कैमरा के द्वारा आप क्या कर सकते हो, किसी ऑब्जेक्ट को आप फोकस कर सकते हो, बाकी सबको आप ब्लर कर सकते हो. तो जब कैमरा से हम कर सकते हैं तो क्या हम अपने मन के द्वारा नहीं कर सकते क्या? राइट? तो इट इज एक्चुअली सीइंग इट थ्रू द आई ऑफ योर माइंड. मन के आंखों से देखना. तो दोस्तों, अगर मन को एक बहुत अच्छा दोस्त बनाना है तो बातें करनी पड़ेगी. राइट? जैसे आप अपने दोस्त से को मन के द्वारा देखकर बात करते हो ना, राइट? उसी तरह मन को अच्छा दोस्त बनाना है तो मन को समझने के लिए मन की भाषा समझनी होगी. जैसे अभी मैं आपसे इंग्लिश में बात कर रहा हूं या हिंदी में बात कर रहा हूं, ठीक है? कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स द लैंग्वेज ऑफ बाइनरी, मशीन लैंग्वेज, जीरोस एंड वंस. उसी तरह दोस्तों बताइए, मन की भाषा कौन सी है? व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ द माइंड? चैट में लिखिए, इमेजिनेशन. अचल हैज गॉट द राइट आंसर. एग्जैक्टली बताइए, मन की भाषा कौन सी है? व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ द माइंड? चैट में लिखिएगा. इमेजिनेशन एंड इमोशंस. ओके, इमोशंस. ओके, और बताइए मन की भाषा कौन सी है? फीलिंग्स. फीलिंग्स नहीं, मैं लैंग्वेज की बात कर रहा हूं. राइट? अगर माँ अपने बच्चे से पूछती, कहती है आई लव यू, तो लव इज एन इमोशन. आई लव यू इज इंग्लिश. मैं आपसे प्यार करती हूं हिंदी है. अमेके तुम्हें बालो बची बंगाली है. ഞാൻ നിന്റെ അടുത്ത് വളരെ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് ये मलयालम है. लव इज एन इमोशन एंड फीलिंग. मैं भाषा की बात कर रहा हूं. व्हाट इज लैंग्वेज ऑफ द माइंड? ओके, मैं अपने स्टूडेंट से पूछा तो वो स्टूडेंट ने खड़े होकर कहा सर आउट ऑफ सिलेबस सर मन के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है. तो मैंने कहा ओके, लेट मी आस्क यू विद इन सिलेबस. ओके माय डियर यंग इंजीनियर्स, टेल मी व्हाट इज लैंग्वेज ऑफ एन इंजीनियर? इंजीनियर की भाषा कौन सी है? व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ एन इंजीनियर? लिखिएगा. इनोवेशन नहीं, वो तो है ही है. मैं भाषा की टेक्निकल, इमेजिनेशन, मशीन, इमेजिनेशन. ओ बच्चों, टेक्निकल. अरे आपने अपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में, द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश. ओ माय गॉड, इंग्लिश, कोडिंग लैंग्वेज, टेक्निकल, मशीन लैंग्वेज. लैंग्वेज ऑफ एन इंजीनियर. अरे भाई भाषा बोलो ना. इंजीनियर की भाषा कौन सी होती है? कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ते? जावा. माय गॉड, न्यू आइडियाज. अरे फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते सी डबल प्लस पाइथन. बाप रे. हाँ, 1 मिनट. ओम प्रकाश has got the right answer. Om Prakash Gautam has got the right answer, and that is engineering drawing, engineering graphics. What is the language of the mind? मन की भाषा है images. इंजीनियर की भाषा है चित्र. The language of the mind, the language of the engineer is drawing, it's painting, it's graphics, it's images, it's चित्र.
तो सुबह से शाम तक आप अपने बारे में आप सभी इंजीनियर जो आप लोग ने क्रिएटिविटी कहा, इनोवेशन कहा, राइट, न्यू आइडियाज कहा, आने वाले समय पर द होल सिस्टम ऑफ इंजीनियरिंग इज गोइंग टू चेंज। अभी पता क्या होने वाला है दोस्तों? इट विल बी अ माइंड मैटर इंटरफेस, राइट। आने वाले समय पर, और ये बहुत पहले से इनोवेशन चालू हो गया है। आज तक हम लोग क्या करते थे, मोबाइल में कहीं पे टच करते थे, द सिस्टम यू स्टार्ट वर्किंग। अब है जहां सोचो, माइंड, योर इमोशंस, आप जो सोचेंगे ना उसके हिसाब से मशीन्स काम करेगा। इट वुड बी माइंड इंटरफेस। तो मैंने एक वीडियो भेजा है नेहा मैडम को। मैं चाहूंगा मैडम, अगर वो वीडियो अभी आप प्ले कर सकते हैं तो हम प्ले करेंगे, नहीं प्ले कर सकते तो डाल देना। और इस वीडियो के द्वारा मैं सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि कैसे आप फोकस रहते माइंड में, और कैसे आपके संकल्पों के द्वारा they have developed a prototype in one of the foreign university wherein in the biomedical engineering department, आप लोगों ने, कुछ लोगों ने ये वीडियो जरूर देखा होगा, जहां पर आप संकल्प करते हो with lot of focus and a prototype of an aeroplane starts moving. We'll watch this video. Neha madam, can I request you to play this video? आप ये वीडियो प्ले कर सकते हैं? We'll just try whether if this video plays, that's fine. Yes. हाँ देखिए, दिस इज माइंड ओवर मैकेनिक्स। थोड़ा सा आप उसको आगे लेके जा सकते। हाँ, यस यस, वेरी गुड, थैंक यू मैडम, आई एम एबल टू सी दैट। ऑडियो की जरूरत नहीं है, बस वीडियो प्ले करिए, आई विल एक्सप्लेन इन एट द बैकग्राउंड। हाँ, लेट इट गो। यस, देखिए, दिस इज यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, राइट। ये जो व्यक्ति जो बैठा है, स्टूडेंट्स है, दे आर ऑल पीएचडी स्टूडेंट्स, राइट। वो बैठे हैं और दे हैव बीन कनेक्टेड विद ईईजी, लॉट मेनी इलेक्ट्रोड्स आर देयर, और वो संकल्प करते हैं एंड दे गिव अ फेस लैंग्वेज एंड अ बॉडी लैंग्वेज विच विद द हेल्प ऑफ अ कंप्यूटर। देखो, वो जो सोच रहा है ना, वो कंप्यूटर ने कैचअप किया। सी हियर इज दिस बॉय, वो जो सोचता है through a computer, the computer is able to detect it, and from the computer goes to the prototype. देखिए, yes, this is what is called as concentration, this is called as focus. वो जो चाहता है वो करे, and the prototype का जो है ना, ये देखिए सामने आप देख सकते हैं, it's a small prototype, but आपके इस बच्चे के संकल्प के द्वारा वो ऊपर नीचे हो रहा है, लेफ्ट राइट हो रहा है। So see, now here is where they are showing it with the help of a description, कि वो जो सोचता है, वो जो इमेज बनाता है, neurons in the two halves of the motor cortex, they control the opposite side of the body, and with the help of an EEG cap, EEG is electroencephalography, it goes through a computer, and computer के द्वारा it goes to that machine, correct? So this is what innovation is now. Now this experiment was done around 6 to 8 years before, तो ऑलरेडी 6 साल पहले कर लिया है। आज हमारे पास ये ऑप्शन है कि इसको हम समझें और अपने हिसाब से हम इनोवेशन जरूर करें। यस, नाउ सी इट्स मूविंग। मैडम, यू कैन स्विच ऑफ, दैट्स इनफ। यस यस, एंड हियर इज द प्रोफेसर एक्सप्लेनिंग टू देम। थैंक यू वेरी मच। तो मैं चाहूंगा कि इसका जो लिंक है वो स्टूडेंट्स को भेजे, ताकि यू कैन सी दैट एंटायर वीडियो ऑफ इट। तो आने वाले समय पर इट वुड बी माइंड मैटर इंटरफेस, ओके, द सेकंड पार्ट ऑफ इट। तो जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे अगर मैं कहूंगा सुबह सुबह का सूर्योदय, अर्ली मॉर्निंग सनराइज, तो मैं बोल रहा हूं, वो ध्वनि आपके मन तक आ रही है, और इमीडिएटली आपका मन वो सुबह सुबह का सूर्योदय का चित्र बना सकता है। तो माय डियर यंग फ्रेंड्स, आप बताएंगे सुबह सुबह का सूर्योदय कौन सा रंग का होता है? कैन यू पुट इट ऑन द चैट बॉक्स? व्हाट इज द कलर ऑफ द अर्ली मॉर्निंग सनराइज? आप चैट में लिखिएगा। वाओ, saffron, Prathamesh, red, orange, Aniket, right, Bhupesh says orange,
right, red, orange, orange, red, orange, orange, orange. Oh, yellow. I was waiting for this word. Yellow, yellow. Oh, good, 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 good. ठीक है, ठीक है. Thank you, my dear friends. Thank you, thank you, thank you. आपने जो रंग बताया ना, उस रंग से स्वामीनाथन को पता चला कि all these young engineers सुबह कितने बजे उठते हैं. मुझे पता चल गया है, मुझे पता चल गया है. The early morning sunrise is red in color. कि धीरे धीरे वो ऑरेंज होता है और फिर वो येलो होता है. तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को कहूंगा, एज अ गुड फ्रेंड आई एम टेलिंग यू, मैं आपके अच्छे दोस्त की तरह मैं आपसे आज बात कर रहा हूं, तो मैं आपको कहूंगा कि अगर आपको जीवन में सफल होना है ना, डू वॉट विच नोबडी एल्स इज डूइंग. वो कार्य करिए जो दूसरे लोग नहीं कर रहे हैं. मतलब क्या है? मतलब सारे आज के जो स्टूडेंट्स को मैंने देखा, नॉट क्रिटिसाइजिंग यू, इट्स योर चॉइस, लेकिन मैंने देखा हमारे जो स्टूडेंट्स है ना, रात को लेट सोते हैं और लेट उठते हैं. लेकिन आप उसको जस्ट रिवर्स करके देखो. आप 10 साढ़े 10 बजे सो जाइए, सुबह उठिए और थोड़ा मॉर्निंग वॉक के लिए जाइए एंड सी द अर्ली मॉर्निंग सनराइज. माय डियर यंग बॉयज एंड गर्ल्स, इफ यू डू दिस फॉर 21 डेज, और सुबह सुबह के मॉर्निंग वॉक में आपका विटामिन डी बढ़ेगा. उस समय रोड खाली रहती है, कोरोना बिल्कुल, आपकी प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाएगी. जब सारी दुनिया सो रही है, अगर आप उठकर 6 सवा 6 बजे मॉर्निंग वॉक में जाएंगे, आई गारंटी यू माय डियर फ्रेंड्स, यू हैव टेकन द फर्स्ट पाथ टुवर्ड सक्सेस. राइट, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और सुबह सुबह का सूर्योदय, अब एकाग्रता का मतलब होता है यहां बैठ, घर में बैठकर जब सुबह सुबह का सूर्योदय, लाल रंग का सूर्योदय, जितना समय आप देख सकते हैं, करेक्ट, 2 फायदा होगा. पहला फायदा, your own releasing vitamin D, correct, that's the of your mind. आइंस्टीन ने कहा था, imagine is more powerful than knowledge. और दूसरी बात, राइट, दूसरी बात, सुबह सुबह का सूर्योदय gives a signal that one day everything will become okay. एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा. तो as a good friend I would suggest कि bring small changes in your life. और आज रात को थोड़ा सा जल्दी सो जाइए और कल सुबह उठिएगा and go for a morning walk. 21 days you do that and you see your very positive aura across you. So paradigm shift from job orientation and skill is what I'm trying to say is what Einstein was telling. Anything in this world is created twice. The power of concentration, focus. Okay. And the third thing which I would love to tell you is a paradigm shift from classroom teaching to blended teaching. आज तक जो हमारा टीचिंग होता था, टीचर्स क्लासरूम में आते थे और आप लोग आते थे, हम लोग पढ़ाते थे. सो अभी तक का जो एजुकेशन सिस्टम था, बस टीचर ओरिएंटेड स्टडी. टीचर जैसे चाहते थे वैसे वो पढ़ाते थे, या टीचर मालिक जैसे थे ना. वी टीचर्स वेयर, इट वाज टीचर सेंट्रिक एजुकेशन सिस्टम. अब जो नया सिस्टम जो स्टार्ट हो रहा है, इट इज स्टूडेंट सेंट्रिक टीचिंग. इट्स ब्लेंडेड लर्निंग. ब्लेंडेड लर्निंग का मतलब ये होता है कि अब जो आने वाला जो सिस्टम बन रहा है, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर विथ यू कि अराउंड 2 weeks बिफोर आई वाज कंडक्टिंग एन FDP organized by the All India Council of Technical Education, which was inaugurated by Professor Sahasrabuddhe, Anil Sahasrabuddhe sir, who is the chairperson of AICTE. तो हम लोग में साथ में बैठे थे और 5 दिन का ये FDP हुआ था, जहां पर हम लोग ये बात को चर्चा कर रहे थे कि अब जो सिस्टम ऑफ टीचिंग होगा, ऐसा नहीं कि टीचर्स आकर पूरा सिखाएं. नो, अभी जो हमको सिखाना है, हम पहले से आपको वीडियो भेज देंगे, स्टडी करिएगा. स्टडी करने के बाद फिर द टीचर्स विल इंटरेक्ट विथ यू. तो जो स्पून फीडिंग हम टीचर्स कर रहे थे, उसके बदले में स्टूडेंट्स को फ्लेक्सिबिलिटी दें ताकि वो जिस तरह से पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है. भारत में ये एक नई बात है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग उसकी तरफ जा रहे हैं. इट्स कॉल्ड एज ब्लेंडेड लर्निंग. ब्लेंडिंग का मतलब होता है यूनियन. ब्लेंडिंग का मतलब होता है टू थिंग्स जॉइनिंग टुगेदर. ब्लेंडिंग. तो टीचर्स, टेक्नोलॉजी, स्टूडेंट्स, ये तीनों का ब्लेंड होना चाहिए. टीचर्स, बीच में टेक्नोलॉजी,
तक मैथ्स एज ए स्वामीनाथन मैं जाता था और मैं जो पढ़ाना चाहूं और जिस तरह से पढ़ाना चाहूं वो मैं पढ़ाता था. अब चेंज हो रहा है. अभी हम टीचर्स को क्या करना है, अगर सपोज आई एम टीचिंग अबाउट से आई एम स्पीकिंग अबाउट काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल्स, तो अगर मैं काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल्स पढ़ा रहा हूं तो मुझसे ऐसे बहुत अच्छे टीचर्स होंगे, चाहे वो आईआईटी है, चाहे एनआईटी है, चाहे पर्ड्यू है, चाहे एमआईटी है. पूरे विश्व में काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल्स में जो अच्छे से अच्छा टीचर ने जो पढ़ाया है उसका वीडियो इज व्हाट आई हैव टू सेंड इट टू द स्टूडेंट, और उसके बाद आई हैव टू इंटरेक्ट. दिस इज कॉल्ड एज ब्लेंडेड लर्निंग. का मतलब क्या होता है, सारा विश्व जो है, हम सारे विश्व हमें सिखा सकते हैं, हम सारे विश्व से सीख सकते हैं. This is a new concept that is going to come. So my dear friends, it's not competition, but it is collaboration. Right? It is not competition. तो मैं टीचर कभी ये नहीं फील कर सकता हूं कि भाई मेरे में स्किल नहीं है. मुझसे अच्छा कोई अगर स्किल होगा तो उसकी जो फैसिलिटी है हमें स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए. धीरे धीरे मैं अपने स्किल पर काम करूं. So it's don't worry about competition. Work on collaboration. That is what is going to happen. आपके पास कोई स्किल है, दूसरे के पास कोई स्किल है, हम लोग एक दूसरे चलो आगे बढ़ते हैं. And coronavirus has brought in a very beautiful universal consciousness. That's very, very important. Right? Einstein once made a very wonderful statement. He said, if I have got 1 hour to save this planet Earth, I will spend 55 minutes analyzing the problem and only 5 minutes to get on to the solution. आइंस्टीन कहते थे अगर मेरे पास 1 घंटे का टाइम है इस सारे पृथ्वी को बचाने के लिए, राइट? आइंस्टीन कहते थे मेरे पास अगर 1 घंटे का टाइम है इस पृथ्वी को बचाने के लिए तो मैं 55 मिनट मैं इस प्रॉब्लम को एनालाइज करूंगा एंड ओनली 5 मिनट्स आई टू द सॉल्यूशन. और नेक्स्ट स्टेटमेंट आइंस्टीन कहते थे नो प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड फ्रॉम द सेम कॉन्शियसनेस दैट यू क्रिएटेड इट. अगर कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उसके उस कॉन्शियसनेस को चेंज करना पड़ेगा. और आज जो हमारा जो कॉन्शियसनेस डर, भय, फियर, एंजाइटी के बदले में इट शुड बी पीस, लव, स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस एंड सक्सेस. सो माय डियर फ्रेंड्स, आई विल जस्ट टेक 2 or 3 मिनट्स. मैं अपने लेक्चर को थोड़ा सा समराइज कर बताना की कोशिश कर रहा हूं. द फर्स्ट इज शिफ्ट फ्रॉम अ गुड मेमोरी टू अ पावरफुल माइंड. मन को अपना अच्छा दोस्त बनाओ. नंबर 2 is a shift from job orientation to skill orientation. Work only on concept. अपने मन को एक बहुत प्यारा दोस्त बनाकर उससे बात करो. And the language of the mind is images. वो सब काम करो जो दुनिया नहीं कर रही है. Early to bed, early to rise. आप बस ट्राई करिए. राइट? मैं आपको इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए नहीं कह रहा हूं. मैं कह रहा हूं बस अपने उस संस्कारों को थोड़ा सा चेंज करो. स्मॉल चेंज. थर्ड थिंग इज फ्रॉम क्लासरूम टीचिंग या शिफ्टिंग टू ब्लेंडेड लर्निंग, जहां पे सारे विश्व से हम सीख सकते हैं और अगर हम किसी को कुछ बता पाए तो सारे विश्व को बता सकें. इट्स यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस. आर यू टू हु आर यू, एंड दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू वाइंड अप. जब आप इंटरव्यू में आते हो ना तो द स्टैंडर्ड क्वेश्चन वी टीचर्स आस्क यू इज प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. अक्सर स्टूडेंट्स जवाब देते हैं I've done my graduation from so and so, my project is so and so, my hobbies are so and so. ये जो आप बोल रहे हो ना वो सब आपके बायोडाटा में है. लेकिन फिर हम ये प्रश्न आपसे क्यों पूछते हैं? क्योंकि जब आप जवाब देते हो तो आप अपने बारे में बता रहे हो और आप अपने बारे में क्या सोचते हो आपके चेहरे पर और विशेष तौर पर आपकी आंखों में रिफ्लेक्ट होता है. करेक्ट? तो इसलिए हम टीचर्स अक्सर आपको कहते हैं लॉट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ डिसिप्लिन. आज के समय पे सेल्फ को जानना बहुत जरूरी है. आज मैं आपको यह बताकर वाइंड अप करूंगा. SELF इसका फुल फॉर्म है सोर्स ऑफ एनर्जी इन लाइफ. मतलब शरीर नहीं हूं, ये शरीर को चलाने वाली मैं एक चैतन्य शक्ति हूं. आत्मा कहते हैं, कुछ लोग उसको सोल कहते हैं, कुछ लोग उसको रूह कहते हैं. फिजिक्स की भाषा में उसको एनर्जी कहते हैं. क्वांटम डायनेमिक्स की भाषा में उसको क्वांटा कहते हैं. क्वांटा मींस पॉइंट ऑफ लाइट, पॉइंट ऑफ एनर्जी. सो नेक्स्ट टाइम व्हेन आई कम एंड मीट यू, आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू हाउ आर यू, आई एम गोइंग टू
हु आर यू। और जब मैं आपसे पूछूंगा हु आर यू, तो मुझे लगता है आप सिर्फ उसको महसूस नहीं करना, आप उसको याद भी रखना। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा आप कौन हैं, तो आप चैट बॉक्स सकते हैं और सभी बहुत प्यार से लिखिए आई एम अ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। लिखिएगा आई एम अ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। असल में देखा जाए ना दोस्तों, तो हम हुए सितारे। थैंक यू भारती, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू आर्यन, थैंक यू। आई एम अ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। आज जो सारी दुनिया जो लड़ाई झगड़ा कर रही है ना, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, ये सब आउटर कॉन्शियसनेस है। बट द मोमेंट यू फील आई एम अ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। सक्सेस की एक बात बताकर मैं वाइंड अप करूंगा। मुझे याद आता है एक स्टूडेंट की मम्मा ने मुझे फोन किया, बोला सर माय बेटा इज गेटिंग इनटू डिप्रेशन सर। तो मैंने कहा क्या हुआ? बोला सर उसकी बहुत इच्छा थी कि ही वांटेड टू जॉइन द यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो मैंने कहा अच्छा, तो सर उसने बहुत मेहनत की सर, बहुत मेहनत की। आई सेड यस आई नो दैट बॉय, ही वाज रियली स्टूडियस, ही रियली वर्कड हार्ड। तो बोला सर उसने 2-3 बार अटेम्प्ट किया और फिर भी उसको नहीं मिला, राइट? अब उसका एक लास्ट अटेम्प्ट बाकी है सर, तो मैं चाहती हूँ कि आप उनसे बात करें। तो मैंने उनसे बात किया, आई सेड आई विल स्पीक टू दैट बॉय। तो मैंने कहा माय डियर बॉय व्हाट हैपेंड? बोला सर आपको तो पता है कि मेरा जीवन का लक्ष्य था, आई वांट टू जॉइन द यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, और मुझे हमेशा लगता था सर कि मेरे नाम के अगेंस्ट में आईएएस हो, करेक्ट, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो मैंने कहा अच्छा फिर आपने मेहनत की? बोला सर इतना मेहनत की, इतना मेहनत की कि फिर मुझे लगा चलो आईएएस नहीं तो एटलीस्ट आईपीएस, आईपीएस नहीं तो एटलीस्ट आईएफएस हो जाए। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ? बोला सर मैंने इतना मेहनत किया, मेरा ओवर एज हो रहा है सर, बस सिर्फ एक अटेम्प्ट बाकी है, तो मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। मैं कहा देखो माय डियर बॉय, अगर आपका जीवन लक्ष्य आईएएस आईपीएस या आईएफएस था ना, तो एक काम करो ना, आप अपने नाम के अगेंस्ट में आप अपना नाम लिखो और साइड में लिख दो आईएएस, आईपीएस और आईएफएस और दरवाजे के ऊपर लगा दो। बोला सर इज इट लीगल? मैंने कहा लीगल है या नहीं है आपसे आजू बाजू वाले पूछेंगे, तो आप उनको समझा दो कि ये मैंने अपना इंट्रोडक्शन लिखा है। बोला सर आई डिड नॉट। मैंने कहा आप अपने नाम के अगेंस्ट में आईएएस, उसका स्टार, मैं चमकता हुआ सितारा हूं। अच्छा सर, मैंने कहा यस, आईएएस मींस आई एम स्टार। बोला सर आईपीएस क्या है? मैंने कहा आप लिखो आई पीसफुल स्टार, आई प्योर स्टार, आई पावरफुल स्टार। यस सर, ये तो फुल फॉर्म आपने बहुत अच्छा बताया। बोला सर आईएफएस क्या है? तो मैंने कहा आई एफ फॉर फरिश्ता, एंजल, यू आर एन एंजेलिक स्टार, फरिश्ता। एक ऐसा एंजल बनो और अपने इस पॉजिटिव ऑरा से दूसरों को भी एम्पावर करो। एंड ही वाज सो हैप्पी। बोला सर वो यूपीएससी में ऐसे में फिर से करूंगा, लेकिन जब मैं इंटरव्यू में जाऊंगा ना सर, तो मैं यही महसूस करूंगा आई एम आईएएस, आई एम आईपीएस, आई एम एफएस, आईएफएस। So my dear friends, IAS means I am star, IPS means I peaceful star, I pure star, I am a powerful star, IFS means I am a फरिश्ता star, angel। ये हमारे अंदर के दिव्य गुण हैं। महसूस करना is the technique of meditation. I'm very happy to share with you, my dear friends. Although मैं कॉलेज में काफी वर्ष पढ़ा रहा था, लेकिन मैं पिछले 25 वर्षों से हर दिन पढ़ता हूँ। And I'm a student in a very wonderful university which is called as Brahma Kumari's ईश्वरी विश्वविद्यालय। यहाँ पर हर दिन मन के बारे में पढ़ाया जाता है। यहाँ से मैंने सीखा जो मैंने कभी किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में नहीं सीखा। कहते हैं एजुकेशन इज नॉट द फिलिंग ऑफ अ वेसल बट इट्स इग्नाइटिंग द लाइट विद इन। हमारे अंदर का जो दिव्य प्रकाश है उसको महसूस करना शिक्षा है। और लास्ट एक बात बताकर मैं वाइंड अप करूंगा। एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन of the divinity already existing in an individual। हमारे अंदर जो सारे treasures है of knowledge, values, wisdom, right, of all peace, love, happiness, power, बस उसको अंदर एक्टिवेट करना है। और जब अंदर का मन बहुत शक्तिशाली होगा तो बाहर आपको सफलता और खुशियां आपका जन्मसिद्ध अधिकार बन जाएगा। तो एक लास्ट आई वुड अगेन लव टू थैंक the Gaikwad Patil in group of institutions for being so beautiful
to invite me. मैं लास्ट बात बताकर मैं वाइंड अप करूंगा कि आसमान में इतने सितारे हो कि बादल दिखाई ना दे, आसमान में इतने सितारे हो कि बादल दिखाई ना दे। दोस्तों, आपके जीवन में इतनी खुशियां आए कि तनाव दिखाई ना दे, तनाव दिखाई ना दे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, एंड आई वुड please be open to learn this technique of meditation. Thank you. May you be blessed with lots of health, wealth, happiness, and lots of success. Over to you, Neha, madam. Session it was, sir. Thank you very much, sir. It's been blessing to have such a fantastic, energetic, session. I appreciate all the knowledge and thoughts you share to encourage our students and wrap up in all positive energy. And I hope for our students this session was really fruitful. The vibe has made our new home so full of positive energy, especially during this pandemic time that whole world is facing. I personally be part of this webinar. Yes. I request participant to ask questions to our expert by raising your hand. Neha madam, I request you कि if Kiran Bain can be invited because अभी थोड़ा shortage of time हो रहा है. Sorry मैंने ज़्यादा time ले लिया. आपके students इतने प्यारे थे कि मैं बोलता गया, मुझे समय का अंदाज नहीं हुआ. I'm sorry for that. लेकिन अगर किरण बहन अगर थोड़ा सा मेडिटेशन करा देना और उसके बाद टाइम होगा तो we will take up questions if you don't mind. Okay. At the end we will take this question. Yes, because people are in the right flow na. So let us take up meditation. Yes. Okay. Time for the next session by Sister Kiran from Brahma Kumaris Vidyalaya. Sister Kiran is a Raj Yoga meditation teacher. With her qualities, capabilities, and Supreme Father's blessing, she has focused her strength and specialty into a meaningful channel. PK Kiran by many colleges, organizations, imparts systematic self-managing leadership courses for high-ranking managers, thus blending spiritual dimension with modern management philosophy. Also successfully conducted courses like stress management, positive thinking, empowerment through spirituality, and many others. Sister, it is privilege. Thus, I now request you to please start the session. Good afternoon. ओम शांति. आवाज आ रहा है? यस किरण बहन, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप बोलिएगा. ओके. तो अभी हमने बहुत सुंदर सर बीच में सुना कि अगर हमें जीवन में सक्सेस चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, तो उसके लिए हमें मन के शक्तियों की बहुत आवश्यकता है. तो यह मेडिटेशन, राजयोग, यह एक आंतरिक यात्रा है, बहुत सुंदर यात्रा है जो मन और बुद्धि से की जाती है. हम फिजिकली स्टेबल रहेंगे, लेकिन थ्रू द माइंड वी कनेक्ट विथ सुप्रीम एनर्जी, सुप्रीम पावर, थ्रू दैट सुप्रीम बीइंग, और हम अपनी इनेट क्वालिटीज को, डिवाइन क्वालिटीज को अनुभव करेंगे. तो पहले हम अपना ध्यान सब तरफ से निकालकर फोकस यूर सेल्फ, तो अभी हमने देखा कॉन्सेंट्रेट यूर, सिट बैक कंफर्टेबली, रिलैक्स कंप्लीटली, क्रिएट ब्यूटीफुल एंड पावरफुल थॉट एंड विजुअलाइजिंग. आज पहली बार हम अपने आप से मिलेंगे. आज तक हमने अपने आप को शरीर तक ही सीमित रखा था, लेकिन यह मटेरियल बॉडी, यह कॉस्ट्यूम, यह तो मेरा एक इंस्ट्रूमेंट है, और इस इंस्ट्रूमेंट को चलाने वाली मैं एक चैतन्य सत्ता, चैतन्य ऊर्जा, एक सोल हूँ, ज्योति समान हूँ. I, the point of energy, point of power, I am loveful, beautiful,
I am peaceful. I am powerful. यह तो मेरी डिवाइन क्वालिटीज है। यह मुझे कहीं बाहर नहीं ढूंढनी है, ये तो मेरे अंदर है। मैं तो सतोगुणी आत्मा हूँ, सर्व गुणों का, सर्व शक्तियों का समुच्चय हूँ। अभी हम अपनी मन और बुद्धि के द्वारा इस भौतिक जगत से पार ऊपर की ओर, आकाश तत्व से भी पार ऊपर जा रहे हैं। द लैंड ऑफ साइलेंस एंड लाइट। यही तो मेरा अपना घर है। Now I am able to see Supreme Being, Supreme Power through the mind. Supreme Power just like me एक ज्योति समान है। वह भी एक परम सत्ता है, सागर है, प्रेम के सागर है, शक्तियों के स्रोत हैं। देखे अपने आप को। आई एम पॉइंट ऑफ एनर्जी। उस परम ज्योति के सामने, उस परम ज्योति से, सुप्रीम एनर्जी से मुझ पर शांति की किरणें आ रही है, शक्तियों की किरणें आ रही है, और मैं भरपूर होते जा रही हूँ। मेरी इनर बैटरी चार्ज हो रही है और मैं रिचार्ज हो रही हूँ। मेरा मन एम्पावर होते जा रहा है। मेरे अंदर सर्व शक्तियाँ आ रही हैं और मुझे संपन्नता का, भरपूरता का अनुभव हो रहा है। यह आत्म शक्तियों की किरणें और एक सर्कल के मुआफिक कवच निर्माण कर रही है। I feel so safe and stable also. I am point of energy in front of Supreme Being, Supreme Power. मन से देखें उस परम ज्योति को। जो भी हमारे अंदर डर, चिंता है, वीकनेस, निगेटिविटी, जो कुछ भी है, वो सब कुछ सौंप दो, सब कुछ दे दो। उस पर को सौंप दो और खुद एकदम हो। अपने मन को, अपने अंदर को खाली कर दो। हमारा भाई आज अभी सुप्रीम एनर्जी को सौंप दो। अब मुझे बहुत रिलैक्स अनुभव हो रहा है। आई फील सो रिलैक्स, सो लाइट। और मैं परमात्मा शक्तियों से रिचार्ज हो, फुलफिल, एम्पावर हो रही हूँ। आई एम पीसफुल सोल। I am
powerful soul. I am Farishta soul. अपने विचारों को देखें. I, the creator of my own thinking, had a choice to create thought and feeling also. आज मैंने इस सेशन में सक्सेस के बारे में, पावर ऑफ माइंड के बारे में, थिंकिंग के बारे में सुना और समझा. नाउ आई हैव टू चॉइस my own inner stage and my feeling and my thought. मेरे आसपास का वातावरण चाहे कैसा भी हो, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, but I choose stability and stable. कोई कुछ भी बोले, कैसा भी व्यवहार करें, जीवन में चुनौतियां कैसी भी आए, but I remain stable. No one, nothing can disturb me. क्योंकि मेरी उपस्थिति बहुत श्रेष्ठ और पावरफुल है. उस श्रेष्ठ और पावरफुल वह स्थिति के आगे यह जो भी सिचुएशन, परिस्थितियां और बातें हैं, ये कुछ भी नहीं, इनका प्रभाव पड़ नहीं सकता. I am peaceful. I am loveful. I am powerful. I am फरिश्ता स्टार. मुझे बहुत शांति का और सकारात्मकता का अनुभव हो रहा है. मेरे विचार एकदम शांत अर्थात कम होते जा रहे हैं और मुझे मन की शक्ति का, मन की स्थिरता का अनुभव हो रहा है. यही मेरे मन के शांति के वाइब्रेशन मेरे चारों ओर वातावरण में फैल रहे हैं और सब कुछ शांत होते जा रहा है. I am very powerful and stable soul. ओम शांति शांति शांति. थैंक यू वेरी मच. Thank you, sister. Relaxed and peaceful. I will take a photo. Request everyone to on camera for a good photo. Let's see on the camera.
Hello. 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 Yes. Yes, yes. Now I Yes. request participants to ask the question to our experts. Anybody Mm. can raise down your hand so that we can identify अब राहू दे आता. for the students. राहुल भाषाला आता ना. Only the students who need to ask the question, please raise your hand. Others, please raise. Yes, you can ask your question. Yes, Himanshi. Achal Kuntak. No, ma'am. On your hand if you're not interested to ask the question. हेलो सर, आरएनडी सॉफ्टटेक से बात कर रही हूँ सर, बजट सर से बात हो रही है। मैंने नोट काउंटिंग मशीन के रिगार्डिंग कॉल किया है। सर, अभी जो नई करेंसी आई है उसके अकॉर्डिंग अभी नया अपग्रेडेड मशीन आई है सर, इसमें जो नए फेक नोट है सर। Hello. Hello. Just one question that has been put up in the chat box. I request if हाँ पूछिए. Or Neha madam, you can ask the candidates to write their questions on the chat box. That's the best thing. Write question in the chat box. Yes. Example, I could see one question I've seen from Vallabh when he says, if a person A donates its entire organs to some other person B, then also B cannot being similar like person A. Then this thing may differ from each other person from others. I appreciate this particular question from Vallabh कि अगर एक व्यक्ति जो है अपना सारा ऑर्गन्स को दूसरे को डोनेट कर देता है तो उस हालत में भी वो व्यक्ति एक की तरह नहीं होगा. इज एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि it is like I'll explain to you in a simple way. Suppose you have a Maruti car, उसमें से आप सारा सिस्टम निकाल कर आप दूसरे कार में फिट कर दो, but finally it depends upon the driver of the vehicle. यहाँ पे जो शरीर जो है it's like a vehicle, the energy is like the driver. So even we have an open heart surgery, we have a transplantation of the kidney, we can donate our cornea, but still it depends upon the driver who is running the vehicle. So A will 100% be different from B, and it depends upon, which I said, the team, कि वो सारे दिन में या सारे अपने जीवन में the thoughts, the emotions, the memories, हार्डवेयर चेंज हम कर सकते हैं लेकिन द सॉफ्टवेयर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे मोबाइल में एक हमारे पास मेमोरी कार्ड होता है, वो मेमोरी कार्ड को उठाकर मैं दूसरे मोबाइल में फिट कर देता हूँ, तो मेमोरी कार्ड के अंदर जो मेमोरीज है वो आप दूसरे मोबाइल में लेकर जा सकते हो ना. तो उसी तरह ये होता है. इट डिपेंड्स अपॉन द ड्राइवर हु इज रनिंग द व्हीकल. So that's the answer, Vallabh. Sahil has asked a very wonderful question. How to identify our skills? That's a very good question, Sahil. बस वो जो फिल्म आपने देखी ना 3 इडियट्स, वो मूवी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप अपने दिमाग से बदले, अपने दिल से सोचो. आपको
अपने इमोशन से देखो कि इसलिए कभी इंटरव्यू में हम लोग आपसे पूछते हैं टेल मी योर हॉबीज, आपको जो अच्छा लगता है वो आप अपनी दिल की धीरे धीरे बात सुनेंगे और अपने मन रूपी फ्रेंड से जब आप बात करेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि दिस कुड बी योर स्किल. इनफैक्ट मेनी whom I have seen, मैं आपको एक छोटा सा, since you have asked me, बहुत सारे young boys and girls after their engineering is sometimes very very confused कि BE BTech के बाद MTech करें, MS करें, GRE करें, GMAT करें, अपना खुद का एंटरप्रेन्योर बने, UPSC सिविल सर्विस ज्वाइन करें, डिफेंस फोर्सेस में ज्वाइन करें. तो इतना कंफ्यूजन है. ये कंफ्यूजन पता है स्टूडेंट्स आपको क्यों होता है? ये कंफ्यूजन इसलिए आपको होता है क्योंकि आपके अंदर वो विशेषता है wherein you can join in any of these streams. So actually getting you कि आप MTech भी जा सकते हैं, आप GRE भी जा सकते हैं, आप GMAT भी जा सकते हैं, आप TOEFL में भी जा सकते हैं, you can join the UPSC also. तो उन स्टूडेंट से मैं ये सजेस्ट करता हूं एज अ गुड फ्रेंड कि जस्ट डोंट फॉलो एवरीबडी. मतलब सब लोग एक चीज मैं भी भागूं ऐसी बात नहीं है. नेवर डू दैट. अपने दिल की सुनो. आपके दिल की आवाज नहीं सुनाई दे रही है तो मैं अपने स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूं कि टेक अ 6 months ब्रेक. क्योंकि जो आप पहला जॉब में जाएंगे ना, जिंदगी भर आपको करना होगा. तो टेक अ ब्रेक. 6 महीने का टाइम लेकर मैं आपको सजेस्ट करता हूं, गो एंड मीट स्टेबल एंड हैप्पी पीपल. आप उन लोगों से मिलिएगा जो जीवन में बहुत स्टेबल रहे हैं और जीवन में जो बहुत खुश रहे हैं, संतुष्ट रहे हैं. आप उनके पास जाकर आप मिलेंगे तो आप देखेंगे दो पीपल मे नॉट बी एज फेमस एज अदर पीपल बट अपने जीवन में बहुत सफल हैं. अगर आप कहेंगे ऐसे लोगों से मिलने से क्या फायदा है, जब आप उनके साथ कुछ समय बिताएंगे 2-3 दिन, तब आपको उनका वो एल्गोरिदम, वो फ्लो चार्ट समझ में आएगा. करेक्ट. सो आई वुड सजेस्ट जब भी लॉकडाउन खत्म होगा ना, सो माय डियर स्टूडेंट्स, यू कैन कम डाउन टू केरला. एंड नॉट बिकॉज आई कैन स्टेबल, बट मैं इसलिए आप लोग स्टूडेंट्स को बुला रहा हूं क्योंकि दिस प्लेस वेयर आई एम स्टेइंग इज गॉट फुल ऑफ नेचर. तो मैं दूसरा सजेशन ये स्टूडेंट्स को देता हूं, गो एंड बी विथ नेचर फॉर सम टाइम. प्रकृति के नजदीक रहो. जब आप प्रकृति के नजदीक रहेंगे तो वो आपके मन को शांत शीतल करेगा. thereby you will be able to identify your strengths. और आपके अंदर जो स्किल है वो आपको पता चलेगा. तो फर्स्ट वर्क ऑन द स्किल ऑफ स्टेबिलिटी, पीस, लव एंड हैप्पीनेस विच इज ऑलरेडी देयर विद इन यू. राइट. अच्छा, कुछ लोगों ने कहा है, कल्पना ने लिखा है कि communication is most important to get success. It was difficult to communicate to me. I found here inside. How can I increase my courage? Okay. Communication के लिए जो दो बातें मैं आपको बताऊंगा. One is at the IQ level, मतलब जहां पर आपको अपने लैंग्वेज पर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा कल्पना. But more than the language तो at any cost after some time you will learn. The second part is at the EQ level. करेक्ट. डर या भय कहीं ना कहीं बचपन से हमने खुद ही डाउनलोड. तो आप मिरर के सामने खड़े होकर बार बार ये कम्युनिकेट करिए, है ना. IAS, IPS, IFS, आई एम अ स्टार, और उसको महसूस करिए. आई एम अ पीसफुल, प्योर एंड अ पावरफुल स्टार, एंड आई एम एन एंजल स्टार. जब आप उसको बार बार अपने आप से महसूस करेंगे ना, फिर विथ लिटिल बिट ऑफ स्किल्स एंड अ कंटेंट you will be able to communicate. So that is not at all a problem. So don't worry about it. Work on to yourself. हमको लगता है, बहुत स्टूडेंट्स को लगता है कि मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं है इसलिए कैन आई कम्युनिकेट. इंग्लिश हिंदी की तो बात ही नहीं है यहाँ पर, है ना. आप बचपन से अगर आपने मराठी बोला है तो आपकी मराठी बहुत अच्छी होगी. A person who is born in UK cannot speak even 10% of the Marathi that you are speaking. इसलिए I really appreciate the new education policy, जहां पे उन्होंने कहा है कि your initial education should be in your mother tongue. तो कहीं ना कहीं, चाहे वो मीडिया हो, चाहे कहीं आजू बाजू, आप इंग्लिश नहीं बोल रहे हैं मतलब आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते. इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज विच आफ्टर सम टाइम यू कैन सर्टेनली डेवलप. राइट. कंचन जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि just going very fast. Just an example, I have focused on my aim, but I'm getting failure in that. I'm trying, but at some point we get depression or negative. How can we be positive to myself? देखिए, इस संसार में जो भी लोग सफल हुए हैं ना, जो भी आप देखो, इन द फील्ड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर को देखो, इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यू सी डॉक्टर कलाम, यू सी पीपल लाइक अमिताभ बच्चन. माय डियर फ्रेंड्स, आज हम उनके पास ऑटोग्राफ के लिए जाते हैं
The signature has become an autograph because of so many failures. Sachin Tendulkar, he actually wanted to become a pace bowler and he was rejected from the MRF Pace Academy. तो जब डेनिस लिली ने उसको रिजेक्ट किया और वो जाने लगे, तो उसका जो दोस्त जो था विनोद कामरी ने सचिन से पूछा, डेनिस लिली कहते हैं, यू डोंट हैव स्टैमिना टू बिकम अ पेस बॉलर. तो सचिन ने मुस्कुराते हुए अपने दोस्त विनोद कामरी को कहा, दैट जेंटलमैन सेज, I don't have the stamina to become a pace bowler, but believe me, my dear friend, मैं इतना स्टैमिना डेवलप करूंगा so that I can hit each and every pace bowler. और आपको पता है सचिन तेंदुलकर सुबह 5-5:30 बजे उठते थे, दादर के क्रिकेट ग्राउंड में जाते थे और वहां पे वो खेलते थे. मतलब उसने इतना पुरुषार्थ किया, वेरी यंग एज. और हमको ये भी कहानी मालूम है, he had to play for more than 70 matches to register his first century. So I would love to tell all my young friends कि ऐसा नहीं कि फेलियर नहीं होता है. डॉक्टर कलाम वांटेड टू बी, अमिताभ बच्चन टॉल, गॉट इट. एडिसन फेल्ड कहते हैं फॉर मोर देन 1000 और 10,000 टाइम्स. ये सब कहानियां सेम पैटर्न है, सेम फ्लो चार्ट है. आज किसी व्यक्ति के ऑटोग्राफ के लिए आप जा रहे हैं, मतलब यू आर एक्चुअली कॉम्प्लीमेंटिंग फॉर ऑल द फेलियर्स दैट पर्टिकुलर पर्सन हैज मेट. तो अगर हम 1-2 फेलियर हमारे पास आ रहा है तो उठकर चलते रहना, जरूर जरूर सफल होंगे. ओवर थिंकिंग बहुत हो रहा है. ओवर थिंकिंग इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा डाउनलोड भी इंफॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है. तो मैं कहता हूँ थोड़ा सा उपवास करो माय डियर फ्रेंड्स. जो इनपुट जो है ना उसको थोड़ा सा कम करो. जैसे जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ ना, ये मैं अपनी पर्सनल व्यक्तिगत बात बता रहा हूँ, यू नीड नॉट फॉलो इट लाइक दैट. तो यस, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ ना, तो मैंने व्हाट्सएप को भी यूज करना थोड़ा सा कम कर दिया है. तो इस तरह से होता है. 3 इडियट्स में ऑल इज वेल जो बात बता रहे हैं, यस, अपने आप से बार बार कहना कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, और वो बार बार अपने दिल को कहता है ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, क्योंकि दिल की धड़कन बढ़ती है. हाँ, मेडिटेशन के लिए प्रथमेश ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि मेडिटेशन देखो, इट इज जस्ट लाइक हाउ टू राइड अ बाइसिकल, इट इज जस्ट लाइक हाउ टू डू स्विमिंग. या तो पहली बार जब आप कार चलाते हो, या पहली बार आप मशीन को ऑपरेट करते हो, तो कोई भी काम जब हम पहली बार करते हैं ना, हमको थोड़ा सा डर लगता है और वो स्टेबल होने में टाइम लगता है. द सेम थिंग इज विथ मेडिटेशन ऑल्सो. तो अगर आपको मेडिटेशन सीखना है तो इनिशियली आपका मन इधर उधर भटकेगा, आप उससे चिंता नहीं करना. बहुत प्यार से मन को दोस्त बनाते हुए जो थॉट्स चल रहे हैं ना उसको ऑब्जर्व करना. जो मन में जो संकल्प चल रहा है उससे युद्ध नहीं करना. और दूसरी बात, मन को अच्छे संकल्प देना. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इफ योर कॉलेज इज इंटरेस्टेड टू लर्न मेडिटेशन, हमारी जो ब्रह्मा कुमारी जो सेंटर है, दे विल कोऑर्डिनेट विथ योर फैकल्टी मेंबर्स. एंड नेहा मैडम, आई रिक्वेस्ट यू कि जो बच्चे मेडिटेशन के लिए इंटरेस्टेड हैं वो आप जरूर जरूर सिखा सकते हैं. और जो भी टीचर्स और एचओडीज जो सुन रहे हैं, तो मैं आपको बहुत प्यार से बताना चाहूंगा कि ये जो मेडिटेशन जो हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं, इट इज बेस्ड अपॉन अ वेरी वंडरफुल रिसर्च दैट वाज डन बाय डॉक्टर कलाम सर, राइट. तो इसीलिए मुझे सियाचिन में और डिफेंस फोर्सेस में जाने का चांस मिला. तो मैं एक वेबसाइट यहाँ पे पुट अप करता हूँ जहां पर आप उसका रिसर्च या उसका जर्नल देख सकते हो. ऐसे नहीं है कि हम कोई ना मनगढ़ंत बात आपको बता रहे हैं. नंबर 1. नंबर 2, द ब्रह्मा कुमारीज इज a partner with the Ministry for Ayush, Government of India, जहां पर हम किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेजेस में ये मेडिटेशन सिखा सकते हैं. तो फर्स्ट इज द रिसर्च, नंबर 2 वी आर अ पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री फॉर आयुष. और तीसरी सबसे अच्छी बात इस विद्यालय की मुझे लगती है, जो मैं बहुत प्यार से स्वीकार करता हूं, और वो है ऑल आवर प्रोग्राम सेमिनार्स आर फ्री ऑफ कॉस्ट. इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाता है. आपको अगर अच्छा लगेगा तो आप जरूर जरूर इसको अटेंड कर सकते हो. तो उस वेबसाइट का मैं नाम बताना चाहूंगा, जस्ट फॉर योर रेफरेंस, इट्स www.3dhealthcare.org. 3 is 3 dimension, exercise, diet and meditation. So 3D, 3 is numerical 3, D is Delhi, healthcare.org. I'll put it on the website also. मैं आपको चैट में डाल देता हूँ ताकि आप उसको देख सकते हैं. तो हम लोग जो कुछ भी आपके साथ शेयर करेंगे is based upon this wonderful research. Okay, so that's it. किसी ने कहा when we are going for an interview you get nervous. ठीक है, देखो इंटरव्यू जाने के लिए एक तो पहले अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर करना जरूरी है, वो आप लोग करते ही होंगे. दूसरी बात जो है ना, जस्ट फील दैट द पैनलिस्ट जो आपके सामने बैठे ना,
आप अपने इमोशनल लेवल पर ये सेटिंग करना है कि वो आपकी बहुत अच्छे दोस्त है, वो आपको कुछ प्रश्न इधर उधर पूछेंगे, but they're sitting there to accept and find out the right candidate. Correct? ये आपको फीलिंग करना है. Another thing which I have found out with the students is कि students get very anxious about the result, and that is what उनका BP बढ़ है. फिर जब BP बढ़ने लगता है तो इमोशनल फॉगिंग हो जाता है, तो जो आंसर्स मैंने पढ़ा था वो भी नहीं बता पाते. तो मैं सभी स्टूडेंट्स को एक अच्छे दोस्त की तरह बताना चाहता हूँ कि जस्ट एंजॉय द प्रोसेस ऑफ एन इंटरव्यू. जैसे अर्जुन को भी बताया गया था कि हे अर्जुन, आपको सिर्फ अपने कर्म पर अधिकार है, यू डोंट हैव एनी राइट ओवर द रिजल्ट्स. तो एंजॉय द प्रोसेस. इंटरव्यू जा रहे हो तो बहुत खुशी खुशी से जाओ, रिजल्ट्स के प्रति एंशियस मत हो. रिजल्ट्स विल ऑटोमेटिकली कम. दिस इज लॉ ऑफ फिजिक्स, इट्स अ लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट. दोस्तों, अगर आपने मेहनत किया है तो आज या कल कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको रिजल्ट मिलेगा. इट मे कम टुडे, इट मे कम टुमारो. दैट इज अ कॉस्मिक लॉ, इट इज अ कॉस्मिक फिलॉसफी. तो वर्क ऑन योर प्रोसेस, द रिजल्ट्स विल ऑटोमेटिकली फॉलो. राइट? Yes. So these are some. Mayuri says, I understand the topic, but I have a little of problem representing in front of others. How can I solve this problem? बहुत सिंपल है मयूरी. मैंने जैसे बताया था, आप कोई भी टॉपिक अगर आप उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं तो सबसे पहले जो जो बोल रहे हैं, अगर आप अपने मन के द्वारा उसको देख पाते हैं, दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन. जब आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं अगर आप अपने मन के द्वारा देख सकते हैं तो 100% सामने वाले व्यक्ति को भी वही दिखाई देगा. सो इफ यू आर एक्सप्लेनिंग एनीथिंग, सी दैट यू आर एबल टू सी इट फ्रॉम द माइंड्स आई. इसलिए हम कहते हैं ना, आपको समझ में आया क्या. हम कहते हैं समझ में आया मतलब he or she should be able to create an image. हाँ, ये बात जरूरत है कि आपकी ऑडियंस जो होती है, कुछ लोग ऑडियो होते हैं, मतलब आपने कुछ बोला, वो उस ऑडियो को चित्र के रूप में बना सकते हैं. कुछ लोग वीडियो होते हैं, मतलब उनको जब तक आप कोई वीडियो नहीं दिखाएंगे उनको समझ में नहीं आएगा. तीसरे कैटेगरी ऑफ ऑडियंस होते हैं किनेस्थेटिक, जब तक आप उनको करके नहीं दिखाएंगे. तो जब आप किसी ऑडियंस के सामने कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आपको नहीं पता कि वो सामने वाला व्यक्ति ऑडियो है या वीडियो है या किनेस्थेटिक है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको तीनों का संगम करना पड़ेगा. तीनों का आप उनको थोड़ा बोलो, फिर उनको थोड़ा सा कोई वीडियो दिखाओ और कुछ अपने एक्शंस के द्वारा उनको करके दिखाओ. तो जब ये ऑडियो, वीडियो और किनेस्थेटिक को आप अपने प्रेजेंटेशन में लेकर आएंगे तो आपके ऑडियंस का चेहरा एकदम मुस्कुराने लगेगा, बिकॉज दे आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू स्पीक. ओके, सो शी सेज यस. कैन यू प्लीज टेल अबाउट द कॉन्फिडेंस व्हाइल टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स. देखो, स्ट्रेंजर्स अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं. आपको उनके बदले में अपने ऊपर फोकस करना है कि आई एम अ स्टार, आई एम वेरी पीसफुल, आई एम वेरी लवफुल. आपके अंदर जब आत्मविश्वास बढ़ेगा ना, तो सामने वाले व्यक्ति कैसे भी क्यों ना हो वो आपको एक्सेप्ट करेगा. राइट? सो डोंट फोकस योर अटेंशन ऑन आउटसाइड, यू फोकस ऑन टू वन सेल्फ. जब हम कहते हैं ना, कॉन्फिडेंस इज अवर कॉन्शियसनेस. राइट? हाउ टू कंट्रोल आवर सबकॉन्शियस माइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आई अप्रिशिएट उद्देश फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन. देखो, सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कॉन्शियस ड्राइव में जो इंफॉर्मेशन स्टोर किया गया, दैट इज सबकॉन्शियस माइंड. करेक्ट? उसी तरह जब हम सामने सिचुएशन होता है, हमारे जो इंटरनल मेमोरी स्टोर किया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इसे सुबह से शाम तक रीड सम गुड बुक्स, वॉच सम गुड इंटरेस्टिंग पॉजिटिव वीडियोस, बी इन द कंपनी ऑफ गुड पीपल. तो आपका जो अंदर का जो सी ड्राइव, डी ड्राइव है ना, वहां अच्छे इंफॉर्मेशन भरते रहो सुबह से शाम तक, तो आपका ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस माइंड बहुत अच्छा हो जाएगा. एंड बी केयरफुल विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो. वैसे आप सभी अच्छे दोस्त होंगे, लेकिन अगर आपको लगता है ऐसा कोई दोस्त है जो आपको बार बार आपकी कमी कमजोरी बताकर आपको डिप्रेशन में लेके जा रहा है, तो ऐसे दोस्तों से भी बचना बहुत जरूरत है. इसलिए इंग्लिश में कहावत है, एन इंटेलिजेंट एनिमी इज बेटर देन अ फुलिश फ्रेंड. एक बुद्धिशाली दुश्मन जो है ना, एक बेवकूफ दोस्त से ज्यादा अच्छा होता है.
तो आप अपने दोस्तों का भी थोड़ा सा ध्यान रखना। इनफैक्ट अगर लग रहा है कि कोई आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रहा है या आपको भटका रहा है, आपको समझ में आता ना, एकदम अपने आप को न्यारे प्यारे करो, एकदम अपने आप को डिटैच करो, अपने ऊपर काम कर कर शक्तिशाली बनकर उसको माहौल ऐसा है कि हम बह जाते हैं। दोस्त ने कहा, इसने कहा, उसने कहा, and then finally we land up ourselves in trouble. So just be careful of your friends. This was applicable when I was a friend. This is applicable today, and this would be applicable after 10 years also. But today, दोस्तों से बचना इसलिए जरूरत है क्योंकि you have an internet in between. आप किसी भी व्यक्ति वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आप जुड़ जाते हो और आपको पता नहीं होता वो व्यक्ति कैसा है। So be very very careful with your virtual friends also. इसलिए मैं कह रहा था कि अपने आप को दोस्त बनाओ. Make your mind as a good friend. That is the best option available right now. Okay. So thank you very much. It is 12:48. Thank you for all your questions. I'll put my email ID with Neha madam's permission. तो अगर आपके मन में और भी कोई प्रश्न है तो आप मुझे मेल जरूर कर सकते हैं. I'll be very happy to interact with all of you. So my email ID, I am putting it on the chat box. It is evswami@gmail.com. I put it in my this one. It is evswami@gmail.com. ठीक है, तो आप इसमें मेरे साथ संपर्क में आ सकते हैं. तो मेरे स्टूडेंट ने पूछा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EV. तो EV इज द नेम ऑफ माय हाउस हियर इन केरला. इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू प्रोनाउंस. तो मैंने कहा E फॉर एलिफेंट, V फॉर विक्ट्री, SWAMI, I फॉर इंडिया @gmail.com. तो स्टूडेंट ने मुझे एक अच्छा एब्रिविएशन दिया. बोला नहीं सर, ये E फॉर एलिफेंट, V फॉर विक्ट्री नहीं जमता है. E फॉर ईगोलेस एंड V फॉर विक्ट्री. तो स्टूडेंट ने मुझे समझाया कि जो व्यक्ति ईगोलेस होता है ना, उसको सबकी दुआएं मिलती है और वो जीवन में सफल होता है. तो मुझे वो आंसर इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा. तो दैट बॉय taught me E for egoless, V for victory. So if you become egoless, if you become humble, if you become polite, then automatically we get the good wishes and we become successful. So once again, thanks to Rathod sir, thanks to Pragriti madam, thanks to Neha madam, and all of you, my dear friends. Jai Hind. Namaskar. Thank you. All the questions of answering the Hello, questions Neha. of the students, and students are continuously answering. Yes. Neha? The webinar very interactive. Yes, sir. Yes, sir. Hello. Neha, are you listening me? Yes, sir. We are able to listen to you. Boliye, sir. Sir, it was a splendid deliverance, and I thoroughly enjoyed. I was connected throughout, and I thoroughly enjoyed your deliberation. So sweet, sir. Thank you very But much. I Sir. have minor correction. Hanji, sir. In your Please. abbreviation, it is not egoless, it is elegance. I think Thank you. elegance would be a right word for. Very for sweet, you. sir. I picked up some points, sir. You talked about EQ, and Yes, I sir. also agree to your proposition that EQ is more important than IQ. I have seen many examples where people who have dropped out from college could perform better in the real world. So we should focus more on our EQ rather than on our IQ. That would give better stability to our mind. Yes, sir. You're right, sir. All right, Neha, you continue. I request all the participants, panelists, and attendees to please. It's my privilege to propose. It's my privilege to propose the vote of thanks for today's webinar on behalf of Tulsiramji Gaikwad Patil College of Engineering and Technology. My heart fills with a lot of gratitude and respect for our distinguished guest speakers, Dr. E.V. Swaminathan sir and Sister Kiran,
for not only sparing your invaluable time with us, but also enlighten us with a commendable talk on the subject. Thank you very much, sir. You have indeed made this event unforgettable. Really, we are highly obliged. It will be a great pleasure for us to listen to you again in future events. I like to express my sincere thanks to our treasurer of GPGI, Professor Sandeep Gaikwad, sir, for always showing us the right path and encouraging us to work in right direction. I would also like to thank our principal, Dr. S.S. Rathore, for your guidance and support. Next, I would like to thank our Vice Principal, Professor Pragati Patil, for leading and inspiring us in working towards the goal of conducting this webinar. Thank you, ma'am, for your huge support at all times. I'm thankful to all the deans and HODs for your valuable guidance and encouragement in all our efforts, and to give support to ensure that this event become successful. Biggest thank I owe to all my dear students of our institution for attending this webinar positively. Without your presence, this event would not have been reached to its height. Thank you from bottom of my heart for joining us with today. I also thank the Professor Vishwajit Ambade sir, Professor Vijay Bagdi sir, who are the backbone of this webinar and making this event to run smoothly. Once again, thank you all for your gracious presence. Now I would like to take the permission from the dignitaries to end the program. Thank you. Have a nice day.